Thank you so very much for joining us in this webinar of 45 minutes, which is on Swabhiman Se Atmanirbharta Ki Aur. And believe me, friends, next 45 minutes are going to be a life-changing 45 minutes for most of us, and rather all of us. So we already have around 3,000 people who have joined us all across the country, and we are expecting a lot more to join us. We are expecting around 25,000 people to join us today on this live webinar. So maybe from 10 seconds, will be good to go. A very, very warm welcome to all of you out there. Thank you so much for joining in. And Aman ji, हमारी participant count जिस रफ्तार से बढ़ता जा रहा है, it is really amazing. I can see, oh my God, the participant count is going up. Already 2,500 लोग हमारे साथ जुड़ चुके हैं. And waiting room में I can see another 700 people. So the count goes up. एक लाइफ चेंजिंग, एक जनरेशन चेंजिंग इवेंट के लिए हम लोग तैयार है, बेताब है. So Aman ji, how much time for us to go live? When do we raise the curtains? So thank you so much, Sanyukta, and I think we are all set to raise the curtains already. We have got some 50,000 registrations for this amazing event, which is just about to happen, first of its kind. And to raise the curtains, we'll like to invite the man behind this webinar, the person who heads the sales for North and Northeast. I'm talking about somebody who has a vast experience of 2 decades in life insurance industry. He has done his postgraduate from Acceleri and executive management courses from IIM Ahmedabad, and somebody who's a visionary. And let me invite Mr. Rajat Srivastava over here. So Mr. Rajat, over to you, sir. हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार. आई एम श्योर आप सभी लोग अपने घर पे स्वस्थ हैं, अपने घर पे आप बहुत आराम से संडे के दिन हमारा इस लाइफ चेंजिंग, जनरेशन चेंजिंग एंड थॉट प्रोसेस चेंजिंग सेमिनार को अटेंड करने के लिए बैठे हुए हैं. एंड आई एम श्योर यू आर गोइंग टू गेट लॉट ऑफ बेनिफिट फ्रॉम दिस सेशन. सो कैन आई इनवाइट द चीफ गेस्ट ऑफ दिस एंटायर इवेंट, मिस्टर मनीष अलग. मनीष अलग जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, and he is the chief guest of the event, having more than 2 decades of experience in financial industry and specializing in life insurance. Has done his education from world's best institute, INSEAD, and is also heading the entire sales for Kotak Life Insurance, which specializes in pension, protection, saving, and annuity business. Over to you, Mr. Manish Alak. Thank you, Rajat. Thank you, Aman, for such a warm welcome. Before we begin, I would like to take this opportunity to thank each and every person who has taken time out on Sunday and is participating in this webinar. Thank you so much for that. So to move on, what I would like to talk about in the next, let's say, 5 to 7 minutes is about Kotak as an institution. So that's something I will talk about. And what should you look at before investing in any financial product? What should you look at for fundamentals of what are the basic fundamental financial planning? So to begin with, let's talk about Kotak as an institution. So I'm sure everybody on this call has heard of Kotak Mahindra Group. So to talk about Kotak Mahindra Group, it was established in 1985 by Mr. Uday Kotak, who's one of India's, man to go to whenever we talk about banking or financial services or economics in India. So it's one of the leading financial conglomerates in our country now. And when we look at Kotak Mahindra Life Insurance, it is a 100% subsidiary of Kotak Mahindra Bank. So it's one of the few companies in India which is 100% Indian. Okay, so Kotak Life Insurance is probably one of the 2 companies which is 100% Indian in our country. So there's no joint venture. We had a joint venture wherein the stake was bought, so it's 100% Indian. And currently, this organization is trusted by more than 2 crore policy holders. So then let's move forward.
Okay. So when we talk about fundamentals of financial planning, what should one look at? So it is said one should look at 5 things for investment. Okay, and to remember it better, you can remember these 5 things as SRLTT. So S stands for safety, R stands for returns, L for liquidity, T for long term. Okay, long term, and last T is for tax free, whether it is tax favored or not. So safe in the current situation, safety of money is utmost important. For example, when you talk to any Japanese investor or anybody who's from Japan, there in that country they don't talk about what's the return on capital. They talk about return of capital. So in such countries, when you keep your money in any bank or any financial institution, what happens is you are charged some amount for keeping your money in that bank. But luckily, we are in India and we can still expect to earn decent returns. But again, when we talk about all that, how safe is it is extremely important. So on that account, I am extremely happy to inform all of you that Kotak Life Insurance has been rated AAA, okay, by CRISIL. So now what does this mean? It basically means it's one of the safest life insurance company to invest in India. It also talks about the strength of the organization in terms of honoring death obligations towards policyholders. Okay, so by and large, it talks about the financial strength of any organization. So AAA is the best rating what any company could hope for. Let's move forward. So that speaks about volumes about the safety of the organization. And when we talk about the Kotak Mahindra Bank as an institution, it's currently one of the most valued bank in the world. Okay, when we look at book to price ratio and things like that, it's one of the most valued bank in the world. And to further honor our Vice Chairman, Mr. Uday Kotak, who's also the Managing Director and CEO of Kotak Mahindra Bank, the Confederation of Indian Industry recently appointed him as president of this great another institution in a country. So we spoke about safety first and why investing in Kotak Life Insurance is very safe even in the current situation. How we are one organization which is growing leaps and bounds. Whether we talk about a claims ratio, it's more than 99% is a claims ratio. Then there's something called solvency margin, which the insurance regulatory authority measures all the companies. So our solvency margin is double of what are required. So it's absolutely safe. So, and we have been giving reasonable returns to all our policy holders. In the last 20 years, we have kind of fulfilled all the promises, whatever we kept in the last 20 years. And as an organization, we are pretty conservative when it comes to dealing with the customers' money. Then talking about returns. Okay, now even in the current scenario, if you look at it, interest rates are dropping. Whether we talk about fixed deposits, whether we talk about some of the other financial instruments. However, they have not dropped as much in life insurance. One big reason is because people invest into life insurance for long term, and our fund managers, they get an opportunity to take long-term calls, to take long-term decisions, to help give moderate returns to our customers. Then third important thing when we look at any kind of financial investment is liquidity. So we have some other products wherein we even give bonuses immediately from first year onwards.
And there are products, whether on the traditional platform as well as unit link platform, and we have products where partial withdrawal is also allowed depending on the needs of the customer. So life insurance works the best in three situations. We need money if you live too long. Family needs money if you don't live too long, and money for emergencies and opportunities. Today, actually, we'll talk more about how much money can we get when we live too long. So that basically is nothing but retirement. So Deepak, Rajat, and the experts today, our retirement experts, are going to talk about that aspect. And another thing, fourth thing which I spoke about when we spoke about SRLTT, the fourth thing, the first T out of that is long term. See, in short term, lot of us, we make investments keeping short term in mind, 1 year, 2 year. But in the current situation, especially when we look at this pandemic, so if you look at history, every 15, 20 years, some event happens in our lives. Something happens in our life which kind of shakes the market, which kind of again puts our hard-earned money into jeopardy. So in these times, the stable institutions are the best place to be in. But again, investing for long term is more important. Over a period of time, we have to create wealth in the long run. When we talk about 15 years, 20 years, 25 years, we need to look at creating wealth on long term. So that's fourth aspect which one should keep in mind. And another important aspect is tax. Whatever investment which we are making, is it tax favored? Because any return which you are getting is not tax favored. And let's say you are into 30% bracket. So if you add cess and all these, some of the other things, straight away 35% from your gains, 35% of your earning out of your profit goes away straight away. For example, if you invest 10 lakh rupees over a period of 10 years, and let's say after 10 years you were supposed to get 20 lakhs, and if it is tax favored, then you get entire 20 lakhs into your pocket. But if it is not tax favored, then you will get only 16 or 17 lakhs in your pocket. So keep this aspect also in mind. And I'm very happy to inform you. I mean, today, when we look at some of the life insurance, most of the life insurance products, they fall under EEE, which is exempt. Okay. So to conclude, all I want to leave you with remember five things when we talk about investments: safety, returns, liquidity, long-term investment, and tax-favored investment. So that's all from my side. Thank you very much. On that note, I would like to hand it back to Rajat and Aman. Over to you guys. Thank you, Manish. I think it's a great opportunity to have you. और ये जो हमारे सेमिनार का नाम है, उसका नाम ही अपने आप में है कि आत्मनिर्भरता से स्वाभिमान से आत्मनिर्भरता की ओर, और हमारे प्रधानमंत्री भी आत्मनिर्भरता की बातें कर रहे हैं. आपने बताया कि हमारी कंपनी पूर्णतः भारतीय है, कंप्लीटली इंडियन है, और साथ साथ आपने ये भी बताया कि हमारा बैंक जो हमारा प्रमोटिंग कंपनी है वो वर्ल्ड का दी मोस्ट वैल्यूड बैंक है. तो कमाल की बात है कि हमारे पास इंडियन होते हुए भी हम वर्ल्ड में सबसे ज्यादा कॉम्पिटिटिव हैं. आपने उसका उदाहरण क्रिसिल रेटिंग से दिया, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट से दिया. तो दोस्तों और आगे चलते हैं मनीष जी को धन्यवाद करते हुए. तो दोस्तों जैसा मनीष जी ने बताया that Kotak has been into big financial businesses. तो सबसे पहले मैं आपके पास आता हूं बताने के लिए कि कोटक लाइफ इंश्योरेंस is one of the oldest private sector life insurance from continuously from 19 years से चल रहे हैं. हम लगातार अपने कस्टमर्स को अपने साथ जोड़ते आ रहे हैं. लाइफ इंश्योरेंस इंडस्ट्री में कहावत है कि बहुत कम कंपनियां प्रॉफिटेबल नहीं होती हैं, लेकिन हम लोग पिछले 12 साल से लगातार प्रॉफिटेबल हैं, और इसी वजह से हम अपने प्रॉफिट को अपने कस्टमर्स के साथ शेयर करते रहते हैं. ना सिर्फ प्रॉफिटेबिलिटी, अगर आप देखें हमारा क्लेम रेशियो जो कि इंश्योरेंस इंडस्ट्री की बैकबोन है, हमारा क्लेम रेशियो 99.01% है. हमारा जो सॉल्वेंसी रेशियो है, जो हमारा रेगुलेटर है IRDA हमारे को मैंडेट करता है कि आपको 1.5 गुना सॉल्वेंसी रेशियो रखना चाहिए, हमने उसका दुगना 3.02 तक रखा हुआ है. हमारे पास
6.12 करोड़ लाइफ ऑलरेडी कवर्ड है और विद सम अश्योर्ड ऑफ 7,55,737 करोड़ का हम लोगों का फंड मैनेज कर रहे हैं और बहुत बेहतरीन तरीके से फंड मैनेज कर रहे हैं, जिसका उदाहरण मनीष जी ने अभी थोड़े दिन पहले दिया। तो ये हमारे बहुत बड़े पिलर्स हैं। आज हम आपके साथ इन सब के बारे में बात भी करेंगे, लेकिन हम आपसे बात करेंगे एक इंसानी जर्नी के बारे में, एक ह्यूमन स्टोरी के बारे में। तो हमारी ह्यूमन स्टोरी जो है, शेक्सपियर ने भी 7 स्टेजेस ऑफ मैन लिखा है, लेकिन हम आपसे बात करेंगे कि हम इंसान की जर्नी को 3 हिस्सों में कैसे बांट सकते हैं। टिल द एज ऑफ 25 साल की उम्र तक हर एक व्यक्ति अपने पेरेंट्स के ऊपर डिपेंडेंट रहता है। 25 साल से 55 साल तक वो व्यक्ति आत्मनिर्भर रहता है, सेल्फ डिपेंडेंट रहता है। लेकिन एक बहुत बड़ा सवाल आता है कि 55 साल के बाद क्या, जब हम रिटायर हो जाते हैं, तब हमारा आत्मनिर्भरता किन चीजों पे निर्भर करता है, किन चीजों पे डिपेंडेंट होता है। ये 3 चीजों पे डिपेंडेंट होता है। एक तो कि हमने कैसे अपनी इन्वेस्टमेंट करी है, हमने इन्वेस्टमेंट कहां करी है और हमने इन्वेस्टमेंट कितनी करी है। इन 3 चीजों पे मेरा रिटायरमेंट लाइफ डिपेंड करेगा कि मैं अपनी रिटायरमेंट लाइफ को एक सेलिब्रेशन के रूप में देखता हूं या मैं अपनी रिटायरमेंट लाइफ को एक संघर्ष के रूप में देखता हूं। दोस्तों, दुनिया बदल चुकी है। एक पुराना जमाना था और एक नया जमाना है। पुराने जमाने में जब हमारे साथ बहुत सारे मैं लोगों को जुड़े हुए देख पा रहा हूं जिनकी एज 60 प्लस 70 है, वो लोग मेरी बात से रिलेट कर पाएंगे कि उस जमाने में एक कोई भी व्यक्ति 20 साल तक कमाने के लिए तैयार हो जाता था और 60 साल तक उसकी बेयर मिनिमम उसकी अर्निंग की इच्छा भी रहती थी और वो अर्निंग लाइफ भी कंटिन्यू करता था। लेकिन लाइफ एक्सपेक्टेंसी इंडिया की उस जमाने में 70 साल की थी। लेकिन आज का जमाना दोस्तों बहुत डिफरेंट है। आज एक व्यक्ति कमाने के लिए तैयार होता है 25वीं साल की उम्र तक, कोई भी मास्टर्स डिग्री करने की वजह से या ज्यादा पढ़ाई करने की वजह से या अपनी चॉइस ऑफ जॉब लेने के लिए। लेकिन यहां पे एक और चीज है, जब हम 25 साल पे तैयार हुए तो हमने 30 साल अपने लिए जीवन में पैसा कमाया और अपनी अर्निंग लाइफ को कंटिन्यू किया। लेकिन यहाँ पे बहुत सारे आप में से जो लोग हमारे 70 साल के मित्र हैं और हमारे साथ कुछ और 30-35 साल के भी मित्र जुड़े हुए हैं, वो ये जानते हैं और बताते भी हैं लोगों को कि मैं 60 साल तक उम्र तक काम नहीं करने वाला, शायद मैं प्राइवेट सेक्टर में हूं, शायद मैं बिजनेस में हूं, तो और मेरी इच्छा भी यही है कि मैं 55 साल पे रिटायर होकर अपने जीवन की हॉबीज को परस्यू करूं। लेकिन एक बहुत बड़ा सवाल और बहुत बड़ी अच्छी चीज है और आप लोगों के लिए बहुत अच्छी बात भी है, और मैं हिंदुस्तान की मेडिकल टीम को, मेडिकल साइंस को कांग्रेचुलेट करता हूं कि उन्होंने हमारी लाइफ एक्सपेक्टेंसी को बढ़ा दिया है। पहले जो 70 साल थी, आज 85 साल लाइफ एक्सपेक्टेंसी है। तो एक जब चीज अच्छी है तो उसका एक विपरीत उदाहरण मैं आपको देना चाहूंगा कि अब जीवन जो है 2 भागों में बंट गया है। पहले मैं 40 साल कमाता था और 10 साल ही उस 40 साल की कमाई हुई पूंजी को खाता था। आज एक रूल 30-30 शुरू हो गया है, यानी कि जैसा मैंने पहले बताया कि हम 40 साल कमाते थे, 10 साल उन जीवन को जीते थे जब हम कमा नहीं रहे हैं लेकिन खर्चा कर रहे हैं। और वही चीज आज देखिए, सिर्फ 30 साल कमा रहे हैं और 30 साल ऐसे साल हैं जब हम कमा नहीं रहे हैं लेकिन खर्चा जारी है। तो ये बात हमारे को मजबूर करती है, बाध्य करती है कि हम लोग अपनी रिटायरमेंट के लिए तैयार हैं या नहीं तैयार हैं। ये बात हमें सोचने पे मजबूर करती है। और आप लोग एक हमारे स्लाइड के ऊपर राइट हैंड साइड कॉर्नर पे एक सिंबल देख रहे हैं, आराम चेयर, इजी चेयर, जो एक व्यक्ति की एक बुढ़ापे की भी निशानी है और उसकी चाहत भी है कि मैं निश्चिंत होके, बहुत बेफिक्र होके इस आराम चेयर पे बैठूं और पैसे की फिक्र मेरे को ना हो। तो मैं यही आगे आपको बताना चाहता हूं दोस्तों कि इसके लिए हर एक व्यक्ति को जीवन में अपने कुछ गोल निर्धारित करने पड़ेंगे, अपने जीवन का एक लक्ष्य निर्धारण करना पड़ेगा। जैसे हमने बचपन में लक्ष्य निर्धारण किया, अब कौन सी जॉब करनी है, बेहतरीन जॉब करते समय ही हमारे को अगला गोल निर्धारित करना है। जैसे कि एक फुटबॉल फील्ड में एक खिलाड़ी अगर फुटबॉल को लेके ड्रिबल कर रहा है इधर से उधर, लेकिन कोई गोल पोस्ट नहीं है, तो उसको समझ नहीं आएगा कि मेरे को गोल कहां दागना है, बॉल कहां मारनी है। उसी तरीके से हमारे जीवन के फाइनेंशियल गोल्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है और हमारे को ये बात पता होनी चाहिए कि वो मेरे को गोल पे कब जाना है, कैसे जाना है, कहां जाना है। और यही चीज मैं आप लोगों के साथ और आगे लेके चलता हूं
और मैं आप लोगों से जब बात करता हूं तो आप हम सभी हिंदुस्तानियों को, जैसा हमने बताया, हम एक कंप्लीटली पूर्णतः भारतीय कंपनी है, तो हम भारतीयों को क्रिकेट के एग्जांपल्स और फिल्मों के एग्जांपल्स, स्पेशली बॉलीवुड के एग्जांपल्स बहुत अच्छे लगते हैं, और यही से हम अपने फाइनेंशियल लेसन्स भी लेते हैं दोस्तों। तो मैं आपसे कुछ फिल्मों का उदाहरण लूंगा बॉलीवुड की। एक बहुत अच्छी रिसेंटली पिक्चर आई थी सैफ अली खान की, और उस मूवी का नाम था तारा रंपम, जिसने हमारे को इंपॉर्टेंस ऑफ सेविंग के बारे में बताया कि जहां पे कार रेसर थे सैफ अली खान, जिसका एक किरदार निभा रहे थे, वो बहुत पैसा कमाते हैं लेकिन शायद उसको जोड़ते नहीं है, सही जगह पे इन्वेस्ट नहीं करते हैं, और अपने जीवन के आगे आने वाले जीवन के बारे में नहीं सोचते हैं, सिर्फ आज ही के बारे में सोचते हैं और पैसा खर्चते रहते हैं। लेकिन सडनली जीवन एक दूसरी दिशा में टर्न ले लेता है और वहां पे उनके पास कोई पैसा नहीं होता, उसकी वजह से उनका जीवन बहुत डिफिकल्टी में चला जाता है, कहीं रेस्टोरेंट में जॉब करनी पड़ती है। इसी के साथ साथ मैं आपको एक और मूवी का एग्जांपल देना चाहूंगा, आजकल के महाअभिनेता, महानायक इस सदी के मिस्टर अमिताभ बच्चन जी के बारे में, और उन्होंने बहुत कमाल की एक मूवी करी थी, आप सभी लोगों को मालूम होगा। क्या हम अगली स्लाइड पे जा सकते हैं क्या, जहां पे मैं श्री अमिताभ बच्चन जी के बारे में की कमाल की पिक्चर के बारे में बताऊं, बागबान, जहां पे वो एक अमिताभ बच्चन बहुत कमाल की एक प्राइवेट सेक्टर की जॉब करते हैं, सारा पैसा अपने बच्चों के पढ़ाई पे और उनकी बिजनेस पे इन्वेस्ट कर देते हैं, और उनको लगता है कि मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, मेरे पास तो मेरे 3 बेटे हैं, मेरे को अपने लिए कोई चीज की जरूरत नहीं है, अपना पीएफ भी निकाल लेते हैं और अपनी पेंशन का भी कुछ खास ज्यादा इस्तेमाल नहीं करते हैं। तो वो मूवी हमारे को याद है। हमारे साथ कुछ लोग जुड़े हुए हैं जो 60 से 70 साल की उम्र के भी हैं, तो मैं उनको एक और मूवी के बारे में याद दिलाता हूं जिसका नाम था अवतार, जो कि राजेश खन्ना और शबाना आजमी जी की मूवी थी। तो हम आगे चलते हैं बॉलीवुड के एग्जाम्पल्स के बाद। अब मैं आपको बताता हूं कि दोस्तों एक आखिरी मूवी के बारे में एग्जांपल दूंगा कि चक दे, आप सबको याद है चक दे मूवी में शाहरुख खान का जो एक बहुत बड़ा अहम किरदार था वो ये था कि अपनी टीम को करेक्ट एडवाइस दे, क्योंकि जो हमारी टीम है, जो हम लोग हैं, अगर हमारे को जीवन में सही सलाह नहीं मिलती, करेक्ट एडवाइस नहीं मिलती, तो शायद हम कभी भ्रमित हो जाते हैं कि कब करना है, क्या करना है, किधर करना है। तो इसी वजह से आज इस सेमिनार में दोस्तों हम आपके लिए बहुत कमाल के, बहुत विद्वान अपनी अपनी फील्ड के, पेंशन और रिटायरमेंट एंड सेविंग फील्ड के 2 विद्वानों को लेके आए हैं। इनके नाम है श्री दीपक गुप्ता जी। दीपक गुप्ता जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे साथ। अमन मेहता जी, जो कि हेड ट्रेनिंग एंड लर्निंग है कोटक लाइफ इंश्योरेंस नॉर्थ के, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। संजुक्ता जी, आप हमारे सभी प्रश्न को हमारे सभी मित्र जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, मुझे मालूम है कि वो सभी प्रश्न जो है अपने इस वेबिनार में देते जा रहे हैं, डालते जा रहे हैं। तो मैं आपसे अनुग्रह करूंगा कि आप वो सभी प्रश्नों को एकत्रित करें और ज्यादा से ज्यादा सवालों के हम जवाब दे सकें। जिन सवालों के जवाब हम नहीं दे पाएंगे आज इस वेबिनार में, वहां पे हमारे प्रतिनिधि आपके साथ आज या कल के बाद कभी भी आपके उन सवालों के सटीक जवाब देने के लिए आएंगे। तो क्या मैं आग्रह कर सकता हूं दीपक गुप्ता जी और अमन मेहता जी, आपकी रिटायरमेंट पे जो आपकी एक्सपर्टीज है वो आज आप हमारे साथ साझा करें। श्योर सर, बहुत बहुत धन्यवाद रजत जी, बहुत ही एनर्जेटिक आपका सेशन हमने देखा। आपने बहुत बढ़िया हमें जानकारी दी, बहुत ही इंफॉर्मेशन था इसके अंदर, और जीवन की कुछ सच्चाइयां जो फिल्मों के सहारे हमें पता चली। सो थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। और मनीष जी ने भी हमें बहुत अच्छा डिटेल दिया कंपनी के बारे में। तो अमन और संजुक्ता, चलो हम आगे ले चलते हैं इस जर्नी को, और हमारे जो गेस्ट आज हमारे साथ मौजूद हैं, आज हम उन्हें रिटायरमेंट स्पेस के बारे में बताएंगे और उससे जुड़ी जानकारियां उन्हें देंगे। तो अमन और संजुक्ता, वेलकम। Thank you so much for joining in, and people are really ready to go. I am getting so many questions. So over to you, sir. Thank you. थैंक यू। तो अमन और संजुक्ता, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि भारत में रिटायरमेंट की तैयारी क्या है। सबसे पहले रिटायरमेंट को लोग देखते कैसे हैं और रिटायरमेंट की तैयारी क्या है, तो आप देखेंगे कि भारत में 77% लोग, 77% लोग अपने रिटायरमेंट की तैयारी अपने बच्चों में देखते हैं, यानी उन पे आश्रित होकर अपना रिटायरमेंट बिताना चाहते हैं। और अगर इसी इंफॉर्मेशन को फर्दर गांव और शहरों के बीच में बांट के देखें, अमन जी आगे बढ़ते हुए जब हम देखेंगे तो जो सिचुएशन है वो उसमें कोई ज्यादा फर्क नहीं है। आप देखोगे कि गांव के अंदर 82% लोग जिनकी उम्र 60 साल से अधिक है वो अपने बच्चों पर ही आश्रित होते हैं।
11% ऐसे लोग होते हैं जो अपने स्पाउस इनकम पे आश्रित होते हैं, और 4.5% लोग ऐसे भी हैं अमन जी, संजुक्ता जी, जिनके पास कोई सहारा नहीं होता। और अगर ये चीज शहरों में देखें तो पिक्चर कोई बहुत अलग नहीं है। 80% लोग बच्चों पे आश्रित हैं, 15% स्पाउस इनकम पे, और 3.5% के पास तो कोई सहारा नहीं है। दीपक जी, ऑन द कॉन्ट्ररी मेरे को हमेशा से ये लगता आया है कि जो हिंदुस्तान है, जो हमारा देश है, वहां पे लोग बहुत ज्यादा सेविंग करते हैं, और ऐसा कहा भी जाता है, सुना भी है मैंने। तो ये जो डेटा आप दिखा रहे हो मेरे को बहुत अचंभित कर रहा है। और स्पेशली जो इससे पहले वाली स्लाइड में आपने जिक्र करा कि 77% लोग, 77% लोग ऐसे हैं जिन्होंने पेंशन की तैयारी नहीं करी हुई। काफी सोच में डालता है मेरे को। बिल्कुल अमन जी, ये जो दोनों रिसर्च आपने देखा है अभी, और ये सच्चाई है। और ऐसा क्यों हुआ है मैं भी समझ सकता हूं कि भारत अदरवाइज तो बहुत सेवर कंट्री में माना जाता है कि लोग यहाँ बहुत सेविंग्स की बड़ी अच्छी हैबिट है, पर इसके ऊपर जब रिसर्च हुआ, जब इस पे सर्वे हुआ, तो आगे बढ़ते हुए अमन जी मैं आपको बताता हूं कि सेबी ने इस पे रिसर्च किया था 5,500 लोगों के ऊपर, और उनसे पूछा था कि भाई जो आपकी सेविंग हैबिट्स है वो किस किस वजह से आप करते हैं। तो उनकी जो टॉप 5 प्रायोरिटीज हैं, कहीं पर भी रिटायरमेंट प्लानिंग नहीं आती थी। और शायद यही कारण है कि पहले जो दो रिसर्च आपने देखे उसमें लोग दूसरों पे आश्रित हैं, अपने ऊपर नहीं। और दीपक जी, मैं आपको अपना बताऊं, हालांकि कभी इस नजरिए से मैंने सोचा नहीं था, पर मैं भी जब अपनी सेविंग कर रहा हूं, पहली बात तो सेविंग करनी मुश्किल होती है क्योंकि मेरे पास पैसा आता है, मैंने गाड़ी ले ली थी अभी हाल ही में, बट रिटायरमेंट हाँ एक बैक सीट लेती है, ये बात पे दम है आपकी। हाँ संजुक्ता जी, आप भी कुछ कहना चाह रही थी शायद। तो हम क्या हमारे भविष्य के बारे में नहीं सोचते? आर वी एक्चुअली नॉट थिंकिंग अबाउट आवर फ्यूचर? संजुक्ता, सुनने में आश्चर्य लगता है पर यही सच्चाई है कि भविष्य की तैयारी बहुत अच्छी नहीं है भारतीयों की। और जब हम आगे बढ़ते हैं अमन जी, तो जो रजत जी ने अभी हमें बताया कि लाइफ की 3 स्टेजेस हैं, अगर मैं इसको सिंपल और बताऊं कि 3 स्टेजेस कैसे हैं। पहली हमारी प्रिपरेशन की तैयारी, प्रिपरेशन स्टेज है। प्रिपरेशन स्टेज यानी जहां पे माँ बाप हमें तैयार करते हैं अपने आगे जीवन में अपने पैरों पे खड़े होने के लिए, जिससे कि हम कमा सके। उसके बाद आती है परफॉर्मेंस स्टेज। परफॉर्मेंस स्टेज वो स्टेज है जहां पे अपनी स्किल्स का इस्तेमाल करते हुए हम पैसे कमाने लगते हैं। और तीसरी जो स्टेज आने वाली होती है वो है बुढ़ापा। और पर बुढ़ापे में एक सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज है अमन एंड संजुक्ता, वो ये है कि बुढ़ापे में माँ बाप शायद हमारे साथ नहीं होंगे, उसकी तैयारी हमें ही करनी है, कोई और आके हमारी मदद नहीं करने वाला। और देखिए, बचपने में तो एनर्जी बहुत थी, पैसा नहीं था क्योंकि माँ बाप दे रहे थे। जब हम परफॉर्मेंस स्टेज में पहुंच गए तो हमारे पास टाइम ही नहीं बचा, क्योंकि हम सवेरे शाम लग गए। अमन एंड संजुक्ता, आज सवेरे हम तैयार हो जाते ऑफिस जाने के लिए, समय ही नहीं है हमारे पास, और पैसा तो आ रहा है और एनर्जी भी है भाई, अभी काम कर रहे हैं, पर इसके बाद जो समय आने वाला है उसमें समय तो वापस आ जाएगा, पैसा होगा या नहीं होगा ये कोई जरूरी नहीं है। और एक बात तो तय है भाई कि शरीर में एनर्जी नहीं बचेगी। और हमें ना वो रजत सर की मेरे को बात याद आई, जब रजत जी स्टार्टिंग में 30-30 का रूल बता रहे थे दीपक जी, आई थिंक वो बहुत ही चौंका देने वाला फैक्ट है, क्योंकि कैसे समय बदला कि पहले लोग 40 साल कमाई करते थे और 10 साल रिटायरमेंट के लिए होते थे, तो फिर भी अच्छे से निकल जाता था समय। और अभी एक तो पेंशन का जो सरकार का और जो चीजें वो कम हो गई, और अभी 30 साल कमाई का समय रह गया और 30 ही साल का रिटायरमेंट का समय है। बिल्कुल बिल्कुल अमन जी, बहुत सही। रजत जी की जो रिसर्च थी, जो उन्होंने डेटा बताया, बहुत ही कमाल का डेटा है और ये सच्चाई है आज की डेट में। और आपको पता है, जब बुढ़ापा आ ही जाता है तो एक कहावत है कि हु इज योर बेस्ट फ्रेंड व्हेन यू आर ओल्ड, एंड द आंसर इज द यंगर यू। बिल्कुल बिल्कुल, आपके बुढ़ापे का सबसे अच्छा दोस्त आपकी ही जब आप जवान थे वही है। और अमन जी, आगे बढ़ते हुए मैं बताता हूं कि जब जो लोग जब ये परफॉर्मेंस स्टेज होती है तो लोग उसमें लगातार काम करते हैं और लोग अपने प्रोफेशन को अडॉप्ट करते हैं, जॉब करते हैं, बिजनेस करते हैं। जो लोग जॉब में चले जाते हैं उनको तो हर महीने पैसा आने लगता है, जो लोग बिजनेस करते हैं उनको भी एक रेगुलर इंटरवल में पैसा आता है, और जो लोग प्रोफेशन अडॉप्ट कर लेते हैं उनको भी रेगुलर इंटरवल में पैसा आता है। और उसी अनुसार उनका पूरा जीवन और उनका पूरी फैमिली वो उसी पे सेट करते हैं। और मगर यही वो वक्त होता है, यही वो 30-30 का टाइम है, क्योंकि 30 साल कमाना है और 30 साल उस पैसे पे अपने आगे रिटायरमेंट को जीना है। तो यही वो 30 साल का समय है जब आपको आगे की तैयारी करना है। आगे बढ़ते हुए अमन जी, आपको मैं बताता हूं, जो लोग ऐसा कर लेते हैं,
हाँ जी। जो लोग अपने 30 साल में बढ़िया तैयारी कर लेते हैं वो कुछ ऐसे दिखते हैं जो तस्वीर में दिखाई पड़ रहे हैं। लोग खुश हैं, अपने बेटर हाफ के साथ टाइम बिता रहे हैं, वेकेशन पे हैं और एंजॉय कर रहे हैं, मगर शायद हर व्यक्ति इतना किस्मत वाला नहीं होता। आगे अगर आप देखोगे तो आपको एक, हाँ दीपक जी, मैं कह रहा हूँ ये वाली किस्मत तो भगवान की लिखी हुई नहीं है, ये तो हमारी खुद की बनाई हुई है, मैं ये मानता हूँ। बिल्कुल अमन जी, बिल्कुल सही बात कही आपने। ये भगवान की बनाई नहीं, ये तो हमारे हाथ में है, हमें ही अपनी तैयारी करनी है। जैसे कि रजत जी ने बताया कि 30 साल, और आज रजत जी कह रहे हैं कि 30 साल आपको तैयारी करनी है। इसका मतलब ये फोरसीन है कि जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है वो ज्यादा है और उसकी तैयारी अपन को ही करना है। आगे देखेंगे अमन जी। हाँ, आप कुछ कह रहे थे। मैं कह रहा हूँ ये लाइफ एक्सपेक्टेंसी तो धीरे धीरे समय के साथ जैसे साइंस तरक्की कर रही है तो ये और बढ़ती ही जाएगी। बिल्कुल बढ़ती जाएगी, है ना। और जो व्यक्ति आज 30 साल 40 साल का है, जब तक वो अपने बुढ़ापे में कदम रखेंगे तब तक ये लाइफ एक्सपेक्टेंसी शायद और बढ़ चुकी होगी। बिल्कुल बढ़ चुकी होगी। तो मेरे ख्याल वो जो 30-30 का रूल है, कहीं वो आगे चल के 30-35 30-40 के रूल में ना तब्दील हो जाए। हो सकता है, बिल्कुल अमन जी, ऐसा संभव है। कई देशों में लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ती चली गई है, जापान तो 90 साल में पहुंच गए। अरे राइट। तो अमन जी, जो मैं बता रहा था कि हर व्यक्ति इतना किस्मत वाला नहीं होता, कई लोग उतना पैसा जमा नहीं भी कर पाते। उसका कारण ये है अमन जी, क्योंकि जो पिछले 30 साल कमाने में गए हैं, पूरे समय जो व्यक्ति था वो इस प्रकार से लोगों को पैसे दिया करता था। बेटा आया, उसने कहा पापा मुझे कॉलेज की एडमिशन फीस देनी है, आपने तुरंत चेक लिख के दे दिया। बेटी आई, पापा मुझे ये जरूरत है, आपने उसे भी पैसे दे दिए। कभी कोई मजबूरी में रिश्तेदार भी आ गया और उसकी भी मदद आपने कर दी। यानी हर समय आपका हाथ यूं था। वो जो 30 साल गुजरे हैं, वो जो आदत पड़ी है, वो लोगों को देने की आदत पड़ी है। और इस वक्त जब बुढ़ापा आ चुका है और तंगी महसूस हो रही है, पैसे नहीं है, तो लोगों के पास हाथ फैलाते हुए अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि वो आदत नहीं है अमन जी अभी। बहुत बड़ी बात है दीपक जी, बहुत बड़ी बात है। आई थिंक जिस तन बीते वही तन जाने, ये तो एक ऐसी चीज है जो महसूस करेगा। तो ये एक मेरे को सुन के ही थोड़ा भारी लग रहा है, पर बहुत बड़ी बात कही आप। और अमन जी, आगे बढ़ते हुए मैं बताता हूँ एक रियल टाइम स्टोरी। यहाँ पे ये महिला अपना जीवन के बारे में बता रही है। वो कह रही है कि भाई मैंने 3 बच्चों को जन्म दिया और तीनों ही बहुत अच्छे से सेटल हो गए, यानी इनकी परवरिश में कोई कमी नहीं रही। एक पायलट बना, एक पार्लियामेंट में जॉब लगी और एक बिजनेसमैन बन गया। ये कहती हुई रोते हुए ये बता रही है कि भाई देखो, मेरे तीनों बच्चे सेटल हो गए, उनके पास उनकी फैमिली के लिए टाइम था, मगर उन्होंने मेरे साथ जो है बर्ताव अच्छा नहीं रखा और बाद में घर से भी निकाल दिया। एनजीओ और चैरिटी में की वजह से आज वो एक वृद्ध आश्रम में समय गुजारना पड़ रहा है। तो अमन जी, ऐसी जो घटनाएं हैं ये बहुत पीड़ा देने वाली हैं, दिल में बहुत दुख होता है, मगर ये सच्चाई है और ऐसी घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। मेरे ख्याल से अमन जी, संयुक्ता जी, आपने देखा होगा ऐसी घटनाएं बढ़ गई हैं सोसाइटी में। बिल्कुल सही कह रहे हैं। नेट आप कहने का मतलब ये है कि हमारे भविष्य हमको अपने हाथ में लेना है और ऐसे बेहद दुख भरी जो सिचुएशन है, यहाँ से बचने का सल्यूशन आपके पास है और वही लेके आप हमारे पास आज आए हो, दर्शकों के पास आज आए हो। बिल्कुल बिल्कुल, मैं उसके बारे में बहुत बढ़िया से जिक्र करूंगा। तो इस स्टोरी को जब मैंने पहली बार पढ़ा था अमन जी, संयुक्ता जी, मुझे बहुत दुख हुआ था और मुझे वो मुहावरा याद आ गया था कि एक माँ तो 100 बच्चों को पाल सकती है, मगर 100 बच्चे मिलकर के आज के जमाने में एक माँ को नहीं रख पाते हैं। तो दीपक जी, बिल्कुल ऐसे ही एक वो इंग्लिश में भी कहावत है ना, वो कहते हैं 1 ऑर्डिनरी फादर कैन टेक केयर ऑफ 4 sons, but it requires 4 extraordinary sons to take care of 1 ordinary father. क्या बात कही अमन जी, क्या बात कही, बहुत सही। तो वैसे तो इंग्लिश की 2 पंक्तियां हैं, पर आई थिंक इसमें बहुत गहराई छुपी है। और ये जो आपने अभी अभी हमारे साथ स्टोरी शेयर करी, इसको कहीं ना कहीं पढ़ के मेरे को वो तमाम मूवीज याद आ गई बॉलीवुड की जो मैंने देखी है। बागबान उनमें से एक है जिसका जिक्र अभी थोड़ी देर पहले हुआ था, और ये कुछ कहावतें याद आ गई, और बहुत बहुत इंपॉर्टेंट बात है। बिल्कुल बिल्कुल अमन जी, आगे बढ़ते हुए मैं आपको ये भी बताता हूँ कि रेगुलर इनकम, एक रेगुलर आय का जरिया क्यों जरूरी है। सबसे पहला आपने एक वो देखा कि वो बूढ़ी माँ क्यों परेशानी में रही, क्योंकि उसके पास रेगुलर आय का जरिया नहीं था। दूसरा, क्योंकि लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ रही है। रजत जी ने ऑलरेडी अपने प्रेजेंटेशन में बताया था कि लाइफ एक्सपेक्टेंसी 85 तक पहुंच गई है। और दूसरा कि जो फैमिली वैल्यूज हैं भारत में वो बदलती जा रही हैं। पहले क्या होता था कि कंबाइंड फैमिली थी, सारा परिवार एक साथ रहता था और अगर कोई तकलीफ में आ भी जाए तो बाकी लोग मिलकर के उसको निकाल लिया करते थे, पर अब ऐसा नहीं रहा।
अब क्या हुआ, बच्चे पढ़ते किसी शहर में हैं, नौकरी लगती है दूसरे शहर में या दूसरे देश में, और फिर वो माँ बाप को अपना जीवन खुद ही जीना पड़ता है। अब देखिए इस कोविड सिचुएशन में घर पे माँ बाप बीमार पड़े हैं पर बच्चे आ नहीं सकते क्योंकि पूरा लॉकडाउन हो रखा था, इसीलिए बुढ़ापा अपने ऊपर ही चलाना है। और एक चीज और है अमन जी कि इन्फ्लेशन एक साइलेंट किलर है। जो चीज आप 100 रुपए में आज खरीद रहे हैं ये 760 रुपए की हो जाएगी 30 साल के बाद, चाहे आप चाहें चाहे आप ना चाहें। मैंने जब भी ये चीजें पढ़ी है ना दीपक जी की आगे चल के महंगाई ऐसे बढ़ जाएगी, 1 रुपए की चीज 7 रुपए की आएगी या 8 रुपए की आएगी, तो एक बार के लिए तो विश्वास नहीं होता, ठीक है। पर जब मैं अपने खुद के लाइफ एक्सपीरियंस को देखता हूं और देखता हूं कि एक समय था जब मैं डॉक्टर के पास जाता था और 100 रुपए की पर्ची कटा करती थी, करेक्ट। और एक आज का समय जब मैं एक डॉक्टर के पास जाता हूं तो शायद 800 रुपए की पर्ची कटती है। और कल तो मैं एक न्यूज आर्टिकल पढ़ रहा था कोविड के ट्रीटमेंट के रेट्स के, तो मेरे होश ही उड़ गए। तो सही आई कह थिंक रहे हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। और अमन जी ये स्थिति सुधरने वाली नहीं है। भारत में कोई सोशल सिक्योरिटी किसी के पास नहीं है, ना तो सरकारी स्पॉन्सर्ड कोई पेंशन स्कीम है कि भाई आप बूढ़े हो गए तो आपको मिलेगी, और ना ही कोई मेडिकल ऐसी सुविधा आपको मिलने वाली है। यानी कुल मिला के आपके बुढ़ापे की तैयारी आपको खुद ही करनी है। ये बात तो अभी तक जो कुछ आपने बताया दीपक जी उस पर स्पष्ट हो गई है कि खुद की तैयारी खुद को ही करके चलनी है। और मोदी जी ने कह दिया आत्मनिर्भर। हाँ, और इसीलिए आज हमारे इस वेबिनार का, इस सेमिनार का जो शीर्षक है वो भी यही है, स्वाभिमान से आत्मनिर्भरता की ओर। बिल्कुल बिल्कुल। आप कुछ कह रही थी? हाँ जी। हाँ संयुक्त आप कुछ कह रही थी। यस, तो वो आत्मनिर्भरता की जो जिम्मेदारी है वो हमारे कंधों पे ही है, राइट? बिल्कुल बिल्कुल, ये आप अपने कंधों पर ही है। और मैं आप दोनों को ये भी बताता हूं कि लोग अपना जो रेगुलर आय का जरिया है वो किस तरीके से बनाने की कोशिश करते हैं। आगे बढ़ते हुए अमन जी अगर मैं बताऊं तो भारत में जो सबसे प्रिय रेगुलर इनकम का साधन लोग बनाना चाहते हैं वो है फिक्स डिपॉजिट। और वो सोचते हैं कि भाई ये तो बहुत ही सुरक्षित है, पैसा लगा दिया आराम से पैसे आते रहेंगे। मैं उनकी इस बात से सहमत हूं कि शायद ये सुरक्षित हो सकता है, गारंटी नहीं है, मगर ये रेगुलर आय का साधन तो बिल्कुल नहीं बन सकता। मैं आपको आगे बताऊंगा मंजिस के ऊपर। दूसरा लोग सोचते हैं कि म्यूचुअल फंड में पैसा लगा दूंगा तो बहुत बेहतरीन, रातों रात बहुत बढ़िया रिटर्न मिल जाएंगे या लंबे समय में मुझे बहुत अच्छे रिटर्न मिलेंगे। शायद ऐसा हो भी सकता है, मगर इसमें टाइमिंग की गारंटी नहीं है। मैं आपको उदाहरण बताता हूं जो अभी मेरे एक रिश्तेदार के साथ हुआ। उनके घर जून 2019 में शादी लगी, उनकी लड़की की शादी थी। और भारत में आप समझते हो अगर शादी है मतलब 8 से 10 महीने की प्लानिंग हो जाती है। लड़का वाला लड़की के घर, लड़की वाला लड़के घर, कहाँ पे होना, ये वो तैयारी सब चल रही थी। तो जब मेरी पहली बार उनसे बात हुई, उनका फोन आया कि दीपक मेरी बेटी की शादी तय हो गई है, तो मैं बहुत खुश हुआ। और उन्होंने बताया मैंने बोला सब तैयारी है आपकी? उन्होंने बोला बिल्कुल, मेरे पास म्यूचुअल फंड्स हैं और मैं उसको रिडीम करके पूरे शादी का खर्चा निकाल लूंगा। दिसंबर के आसपास जब वो पहली बार अपना म्यूचुअल फंड अकाउंट चेक किया तो 65 लाख रुपए थे। वो बहुत खुश हुए और उन्होंने कहा कि दीपक मेरे पास सफिशिएंट अमाउंट है और ये मैं तैयार हूं। फिर आ गया कोविड आने से मार्केट गिरने लगी और गिरते गिरते 40% तक नीचे उतर गई। उसके बाद जब उन्होंने अपने जाकर म्यूचुअल फंड चेक किया तो रह गए 38 लाख रुपए, 27 लाख रुपए का नुकसान हो रहा था। तुरंत उनका मुझे फोन आया, अमन जी तुरंत फोन किया कि दीपक आप तो फाइनेंशियल फील्ड में हो, फाइनेंशियल एक्सपर्ट हो, आप मुझे बताओ ऐसी स्थिति में मैं क्या करूं। तो मैंने उनको सबसे पहले जो सिंसियर एडवाइस जिसको कहते हैं मैंने दिया। मैंने कहा सबसे पहले आप अपने घर की शादी रजामंदी से 6 महीना पीछे कर दीजिए। तो उनको हैरानी हुई। मैंने बोला इससे दो फायदे होंगे आपको। नंबर 1 कि गैदरिंग नहीं होगी तो आपका परिवार, आपके होने वाले समधी जी का परिवार बीमारी से बचेगा। दूसरा कि हो सकता है इन 6 महीनों में मार्केट में कुछ सुधार आ जाए, जो 27 लाख का नुकसान आपको अभी हो रहा है वो शायद कुछ कम हो जाए। तो ये बताने का मतलब आप दोनों को ये था अमन जी और संयुक्ता जी कि ये जो लाइफ इवेंट्स है, बच्चा भाई 21 साल के बाद पोस्ट ग्रेजुएशन पे जाएगा ही जाएगा। ये कोविड की वजह से किसी देश के दूसरे देश में आक्रमण करने से रुक नहीं सकता। लाइफ इवेंट्स कभी रुक नहीं सकते, वो अपने समय पर होंगे जरूर। इसलिए आपका ये रेगुलर आय का जरिया अच्छा नहीं हो सकता। आपको रेगुलर चाहिए और फिक्स चाहिए। इसके अलावा एक जो और भी लोग पसंद करते हैं वो है इक्विटी। लोग इक्विटी में पैसा लगाना बहुत पसंद करते हैं, मगर ये तो और ज्यादा ट्रिकी गेम है। इसमें बहुत जबरदस्त नॉलेज, अंडरस्टैंडिंग, जिस स्टॉक को आप लेते हैं आपका विजन उस स्टॉक के लिए और उस प्रमोटर का विजन अपनी कंपनी के लिए सेम होना चाहिए, तब जाके आपके पैसे बढ़ेंगे। इसमें तो कहानी ये है कि लोग मर्सिडीज में आते हैं और साइकिल चलाते हुए मार्केट से बाहर निकलते हैं। रिवर्स भी होता है अमन जी, संयुक्ता जी, मगर बहुत कम लोगों के साथ। तो दीपक जी एक बात कहना चाहूंगा
हाँ बताइए ना। वो ये है कि आपने तो मेरे को अब बिल्कुल असमंजस में डाल दिया है, कंफ्यूज कर दिया है। ओहो। क्यों कर दिया मैं आपको बताता हूं। हाँ क्योंकि जब आप बात बता रहे थे रिटायरमेंट की, बहुत ही बेहतरीन तरीके से रजत जी ने बताया, आपने बताया, आपने एक स्टोरी हमें दिखाई, तो मेरे मन में भी ये लगा कि रिटायरमेंट को लेके मेरे को जागरूक होना चाहिए और कुछ पैसा जोड़ना चाहिए। पर हाँ उसके तुरंत बाद आपने ये हमें बताया कि कैसे फिक्स डिपॉजिट का आप अभी बताएंगे डिटेल में शायद, म्यूचुअल फंड और इक्विटी से हमें बहुत भारी रिस्क है, और जो चीज इतनी क्रिटिकल और इंपॉर्टेंट है जैसे हमारी खुद का गोल्डन ईयर्स, हमारा बुढ़ापा, हमारी रिटायरमेंट, उसके लिए हम इस पे टोटली निर्भर क्यों नहीं रह सकते। तो थोड़ा बिल्कुल। मार्गदर्शन कीजिए और ये बताइए तो लगाएं कहाँ पैसा, देखिए पैसा जी, कहाँ डाले। बिल्कुल बिल्कुल, आज मैं इसीलिए आप लोगों के बीच में आया हूं और यही मैं बताना चाहता हूं, अगर आपकी उम्र है 60 साल या उससे ऊपर और आपको रेगुलर इनकम चाहिए, तो जो सबसे बढ़िया साधन होता है भारत के अंदर, जो कम लोग जानते हैं, कम लोग एक्सरसाइज करते हैं, वो है एन्युटी। ओके। सुनने में टेक्निकल वर्ड है एन्युटी, जिसको साफ और साधारण शब्दों में पेंशन कही जाती है। आप पेंशन की जुगाड़ करिए, आपका पेंशन यानी एन्युटी आपका आना चाहिए। एन्युटी रेगुलर इनकम का सबसे बढ़िया साधन है। और इसी के साथ मैं आगे और बताना चाहूंगा अमन जी, जो मैंने बताया था कि जो इंटरेस्ट का ट्रेंड है, आगे आगे आपको पता चलेगा, पिछले 50 सालों में अगर आप देखते हैं अमन जी, तो ये लगातार नीचे आता चला गया। सन 2000 तक, सन 1970 से लेकर 2000 तक, जब इकोनॉमी पूरी तरह से भारत सरकार के हाथ में होती थी, तब भी इंटरेस्ट रेट 2-2% गिरता था हर 10-10 साल में। पहले 18 था, 1980 में 16, फिर 14, फिर 12, 2000 के बाद इकोनॉमी खोल दी गई और पैसे और ज्यादा आदान प्रदान बढ़ गया। उसके बाद तो उसकी गिरावट 3% पे आ गई, उसके बाद 3%, और पिछले 10 सालों में तो 3.5% की गिरावट है। और ये कहां तक जाएगी इसका कोई अनुमान नहीं है, इसलिए मैंने 2030 के ऊपर क्वेश्चन मार्क बना दिया है। मेरी नजर भी वही थी दीपक जी, अगर आप मेरे से पूछें, और यकीन मानिए इतना एहसास नहीं होता हमें रोज की इस मात्रा से ये इंटरेस्ट रेट गिर रहे हैं। पर आपका ये जो ग्राफ आप हमें दिखा रहे हैं बिल्कुल चौंका देने वाला है और बिल्कुल सत्य है। बिकॉज मेरे को आई रिमेम्बर दोज डेज व्हेन एफडी यूज्ड टू गिव मी 14%। उसके पहले मेरे फादर ने देखा होगा ये पर 14% तक मुझे खुद को ध्यान है कि ये एफडी दिया करता था, अभी 5.5% पे है। तो मेरे को एक बात बताइए दीपक जी, आप तो इतना पेंशन के बारे में इतने ज्ञाता हैं और इतने देश विदेश में ट्रेवल करते हैं और बात करते हैं इन्वेस्टमेंट्स की, आपको क्या लगता है ये 2030 में कहां जाएगा? देखो, संयुक्ता जो है पूरा घर चलाती है ना, तो संयुक्ता से पूछते, संयुक्ता क्या अनुमान है कि 2030 तक में शायद ये रेट कहां पर होंगे? तो हम घर चलाते हैं, सही बात है, और बहुत सारे कस्टमर्स से भी मिलते हैं जो बाहर दूसरे देशों में काम भी करते हैं। हमारे बहुत सारे एनआरआई क्लाइंट्स हैं। तो जापान जैसे देशों में आज तो पैसा देना पड़ता है बैंक में पैसा रखने के लिए। एंड मेरा आपसे सवाल है दीपक जी, क्या हमारे साथ भी यही होने वाला है? बिल्कुल सही आपने जाना है संयुक्ता जी, आपकी जो चिंता है बिल्कुल वाजिब है, क्योंकि हम एक विकासशील देश है, यानी डेवलपिंग कंट्री की श्रेणी में आते हैं और हम फॉलो कर रहे हैं डेवलप कंट्रीज को। यानी कि एक समय हमारे साथ भी वो होगा जो डेवलप कंट्रीज के साथ हो रहा है। सबसे नजदीक, जैसे संयुक्ता जी आपने बोला, जापान है। जापान में जैसा आपने बताया कि आज जब आप बैंक में पैसे रखने जाते हैं तो पैसा इंटरेस्ट के रूप में मिलता नहीं है, जो सुविधाएं आपने ले रखी है ऊपर से चार्जेस आपको देने पड़ते हैं। ये हमारे यहाँ भी होगा। और दीपक जी, इसका मतलब है मैं, आप, अमन जी और हमारे एज ग्रुप के लोग जब रिटायरमेंट तक पहुंचेंगे तब हम एफडी के ऊपर तो नहीं डिपेंड कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल सही बोला संयुक्ता जी, उसके ऊपर आप बिलीव नहीं कर सकते हैं। और आगे बढ़ते हुए अमन जी, तो हाँ कुछ। दीपक जी, एफडी के साथ ना एक और चीज है जिसके बारे में बहुत भारतीय बात करते हैं, मेरे घर पे भी मेरे को कहा जाता है, वो है पीपीएफ। बिल्कुल तो सही अगर है। आप उस पे भी थोड़ा प्रकाश डालें कि वो एक सही जगह है पैसा रखने की, लगाने की, क्या नहीं? बिल्कुल अमन जी, आगे बढ़ते हुए मैं आपको यही बताना चाहता हूँ, पीपीएफ का भी अगर आप देखेंगे ग्राफ, वो नीचे जाता गया। पीपीएफ जो था पहले बड़ा स्टेबल इंस्ट्रूमेंट माना जाता था, सरकार 5 साल में एक बार उसका रेट रिवाइज करती थी। फिर क्या हुआ, रेट तेजी से गिरने लगे, सरकार ने हर साल उसको रिवाइज करना शुरू कर दिया और अब हर क्वार्टर में उसके रेट्स रिवाइज होते हैं और शायद वो दिन दूर नहीं जब हर महीने इसके रेट शायद रिवाइज हो जाया करेंगे।
तो इसीलिए मैंने इसकी भी देखिए ग्राफ नीचे जाती जा रही है और 2030 में मैंने इसके ऊपर भी क्वेश्चन मार्क बना दिया है। ये क्वेश्चन मार्क पे आप कुछ तो बताइए, ये इस हिसाब से क्या ये भी 4% 3% तक जा सकता है? बिल्कुल सही अनुमान है हरमन जी, ये उस लेवल को टच कर जाएगा। क्वेश्चन मार्क के साथ साथ बहुत सारे क्वेश्चन मार्क्स हमारे यहाँ पे आ भी रहा है, एंड आई विल रिक्वेस्ट पीपल आपके क्वेश्चंस भेजते रहिए, क्योंकि ये तो हमारा मैंडेटरी सैलरी डिडक्शन है, हमारे सैलरी से डिडक्ट होती है और हम बड़े शांति से बैठते हैं कि चलो पीएफ है, लेकिन आप पीएफ और पीपीएफ का तो हमारा आंखें खोल दिए। बिल्कुल, तो आगे बढ़ते हैं अमन जी। जैसे मैंने बताया कि जो सबसे बढ़िया साधन है वो हमारे पास है, कोटक लाइफ इंश्योरेंस के पास, जो हम आपके रिटायरमेंट की पीसफुल एंड सुखमय रिटायरमेंट की पूरी तैयारी करके देते हैं, और उसका नाम है कोटक लाइफ टाइम इनकम प्लान। उसमें आप एन्युटी पा सकते हैं और साथ में आप पहले भी अपनी तैयारी शुरू कर सकते हैं। जब आप पेंशन की तैयारी करते हैं तो सबसे पहले आप अपना पैसा थोड़ा थोड़ा पैसा जमा करना शुरू कर देते हैं, और आपकी वेस्टिंग एज आती है, यानी ऐसी उम्र जहां से आपको पेंशन मिलनी शुरू होती है, और उसके बाद लगातार आपको पेंशन मिलती रहती है। यानी अगर एक पूरी पेंशन की प्लानिंग आपको करनी है तो सबसे पहले आपको थोड़ी थोड़ी रकम जो है जमा करनी होगी, जिसके लिए हमारे पास एक और प्लान है, उसको हम प्रीमियर पेंशन प्लान कहते हैं। ये बेहतरीन प्लान है। इसमें आप, अगर आपकी उम्र कम है, आप 25 साल के हैं, 30 साल के हैं, 35 साल के हैं, 40 साल के हैं, आपके पास 10, 15, 20, 25 साल का समय है, आप इस प्लान के थ्रू अपना पैसा जमा करते जाइए, और जब आपकी रिटायरमेंट आएगी आपको एक मुश्त बहुत बड़ा कॉर्पस मिलेगा, जो आपको पेंशन के रूप में कन्वर्ट कर दिया जाएगा और आपको मंथली पेंशन आने लग जाएगी। और जब दीपक जी, हाँ, मैं अगर सही समझ पा रहा हूं तो आप ये बताना चाह रहे हैं मेरे को और मेरे थ्रू तमाम वो लोग जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं इस वेबिनार पे, कि चाहे व्यक्ति की उम्र 30 साल है, 35 साल है, या जो भी एज में वो है, वो आज ही एक्यूमुलेशन फेज में आ सकते हैं, यानी कि पैसा जोड़ना शुरू कर सकते हैं। बिल्कुल, और हमारे पास, कोटक के पास बहुत ही बेहतरीन प्लान्स हैं जो इसमें उनकी मदद करेंगे। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। यदि वो ऑलरेडी पेंशन फेज में है, हाँ, यानी कि वो ऑलरेडी 60 साल, 65 साल या उससे ज्यादा उम्र के भी हैं, तो भी हमारे पास कुछ बहुत ही बेहतरीन प्लान है जिसमें वो अभी अपना पैसा इन्वेस्ट करके पेंशन ले सकते हैं। क्या मेरी अंडरस्टैंडिंग सही है दीपक जी? बिल्कुल सही अंडरस्टैंडिंग है अमन जी। तो आगे Alright. चलते हुए मैं आपको इमीडिएट वाले के बारे में बात करता हूं, जहां पे आपको तुरंत पेंशन मिलनी शुरू हो जाती है। ओके, वेरी नाइस। तो आगे बढ़ते हैं। तो जैसे मैंने बताया, इसका नाम है कोटक लाइफ टाइम इनकम प्लान, जो एक इमीडिएट एन्युटी प्लान है, यानी आपने आज पैसे दिए, अगले महीने से आपकी पेंशन चालू हो जाएगी। और यही नहीं, ये प्लान पूरी तरह से गारंटीड होता है। आगे मैं आपको बताता हूं अमन जी, ये इस प्लान के अंदर सारी की सारी गारंटी, यानी जो भी चीज आज हम आपको बताएंगे वो सब गारंटीड होंगी। तो गारंटी तो देखो जी हर ज्यादातर इंस्ट्रूमेंट्स में मिलती है, पर चलो एक बार प्लान समझते हैं, फिर मेरे मन में कुछ सवाल आ रहे हैं, मैं आपसे पूछूंगा जरूर दीपक। बिल्कुल बिल्कुल, आगे बढ़ते। तो जो मैंने बताया ये पूरी तरह से गारंटीड होगा, और इसके अंदर बहुत सारे ऑप्शंस होंगे, यानी आप अपनी पेंशन किस तरीके से लेना चाहते हैं वो एन्युटी ऑप्शंस आप चूज कर सकते हैं। अपनी उम्र, अपने पारिवारिक स्थिति को देखते हुए आप इसका सिलेक्शन कर पाएंगे, जो मैं आपको एक एक करके बताता हूं। जरूर, आगे चलते हैं। हाँ, ये वो प्लान्स, ये वो ऑप्शन है जो आप ले सकते हैं, और एक एक करके मैं आपको इसमें आगे बताता हूं। सबसे पहला है लाइफ टाइम एन्युटी, यानी कि यहाँ पे मैंने क्या किया, ये जो सज्जन जिनकी फोटो मैंने, मतलब जो एनिमेशन यहाँ पे है, इनका नाम मैंने रखा मिस्टर ए। 1 करोड़ रुपए ये लेके आते हैं, और उम्र है 65 साल, और हमारे साथ लगाते हैं इनको 8,57,900, 8,57,900 की पेंशन शुरू हो जाएगी सालाना, यानी करीब करीब अगर आप देखें तो 72,000 रुपीज पर मंथ इनको मिलने लग जाएंगे। और कब तक मिलेंगे? जब तक ये जीवित रहेंगे। देखिए अमन जी, कितनी बड़ी बात है, यहाँ पे बैंक दे रहा है 5 से 5.25% का इंटरेस्ट, और यहाँ पे आपको मिल रहा है 8.5% का इंटरेस्ट, यानी करीब करीब 3% का फर्क है। और ये हम कब तक देंगे? मान लीजिए इनकी उम्र आज 65 साल है और ये 100 साल तक जीवित रहते हैं, यानी कि अगले 35 साल तक हम उनको इसी रेट से पेंशन देते रहेंगे। तो यानी कि मैं ये समझ पा रहा हूं, अगर मेरी उम्र 60 साल है, हाँ, और मैं अगर 1 करोड़ रुपए देता हूं इस वक्त, तो एक हाँ, गारंटीड अमाउंट विच इज बिल्कुल 7.8%, 7.82% सालाना मुझे आता रहेगा। बिल्कुल, और ये परसेंटेज भी गारंटीड है, तय उम्र। बिल्कुल, जब तक लाइफ रहेगी तब तक ये रेट गारंटीड रहेंगे। तो अगर कल को ये इंटरेस्ट रेट गिरते हैं, कम हो जाते हैं,
कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर आपने एक बार कॉन्ट्रैक्ट कर लिया कंपनी के साथ, आपके हाथ में पॉलिसी डॉक्यूमेंट आ गया, तो आपकी पेंशन गारंटीड हो गई पूरे जीवन के लिए। बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। अब हम आगे चलते हैं अमन जी। इसमें एक और ऑप्शन है। इसमें जो दूसरा ऑप्शन है, ऐसे लोग जिनके परिवार में डिपेंडेंसी है, मतलब माँ बाप हैं, भाई बहन हैं, छोटे बच्चे डिपेंडेंट हैं, और वो चाहते हैं कि मृत्यु के बाद वो पैसा उनके परिवार को जाए, तो वो भी यहाँ पे किया जा सकता है। यहाँ पे एग्जांपल देखिए, मान लीजिए 60 साल की उम्र है, तो उनको मिलेंगे 5.77% की गारंटी, यानी 5,77,000, करीब करीब 48,000 रुपए महीने की पेंशन उनको आने लग जाएगी, और उनके मृत्यु के बाद ये सारा पैसा उनके परिवार को दे दिया जाएगा। यानी एक हिसाब से स्टेट प्लानिंग, अपनी उन्होंने अपना जो वारिस था उसको ये पैसा दे के गए। विरासत छोड़ने की सबसे बढ़िया तरीका है ये। तो यानी कि इसमें दोनों चीजें एक साथ आ रही हैं, यानी कि पेंशन आती रहेगी तय उम्र, बिल्कुल। कल को जब मैं नहीं रहता इस दुनिया में, तो वो सारा पैसा मेरे लीगल हेयर्स को, मेरे बच्चों को, मेरी वाइफ को, जो भी पीछे है उनको दे दिया जाएगा। हाँ बिल्कुल, आपके परिवार वालों को चला जाएगा ये। बेहतरीन। दीपक जी, क्या हम बोल सकते हैं रहे या ना रहे हम महका करेंगे? क्या बात है संयुक्ता जी, क्या बात है, बहुत सही चीज कही आपने। इसी के साथ अमन जी, कुछ क्वेश्चंस मेरे पास आते हैं। लोग कहते हैं कि भाई इतनी ही रकम अगर मैंने मकान में डाल दी होती तो क्या होता। तो मैंने ना अगले उसमें मैंने कंपैरिजन किया हुआ है। आगे बढ़ते हुए मैं आपको बताता हूं, अगर यही पैसा मकान में डाल दिया जाए तो क्या होगा। जरूर जरूर जरूर। ये तो मेरे जहन का भी सवाल था, अच्छा हुआ आपने ऑलरेडी ले लिया। तो बताइए दीपक जी। देखिए, मान लीजिए किसी व्यक्ति के पास 2 करोड़ रुपए हैं, और वो 2 करोड़ रुपए प्रॉपर्टीज में लगाता है, ये सोच करके मुझे उससे लगातार रेंट आएगा और मेरी रेगुलर इनकम का अच्छा आय का स्रोत ये बन जाएगा। तो अमन जी एंड संयुक्ता जी, अगर 2 करोड़ रुपए की कोई प्रॉपर्टी आप लेते हैं भारत के अंदर, तो उसमें जो रेंटल है वो करीब 30,000 रुपए महीना से लेके 40,000 रुपए महीने के बीच में आएगा। तो हायर लिमिट में मैं 40,000 रुपए ले लेता हूं, मगर उसमें कंडीशन ये है कि वो मकान पूरे समय यानी पूरे 12 महीने तक किराए पे होना चाहिए। खाली रहेगा तो किसी काम का नहीं। क्योंकि भारत में ना एक नियम है जो बहुत कम लोग जानते हैं, कि आपका सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी छोड़ के जो एडिशनल आपके पास प्रॉपर्टी होती है, अगर वो खाली भी पड़ी रहे तो भी उसकी बराबर की जो इनकम है, डीम्ड इनकम उसको कहते हैं, यानी बाजार की जो कीमत है किराए की, वो आपकी इनकम में जुड़ती है और उसमें टैक्स देना पड़ता है। तो आपको कर रहे हैं? हाँ अमन जी, बिल्कुल ऐसा ही होता है। बहुत कम लोग जानते हैं। सरकार आपसे उसका भी टैक्स लेगी, भले ही वो प्रॉपर्टी खाली है, मगर जो उस समय उसका जो किराया चल रहा होता है बाजार का, वो आपको आपकी इनकम में जोड़ करके बताना होता है। ओके। तो मान लीजिए आपने अपनी प्रॉपर्टी 12 महीने तक बराबर किराए पे चढ़ा के रखी, अपने एजेंट को भी कमीशन दिया कि भाई ये मकान खाली हो तुरंत चढ़ना चाहिए, आपने उसका मेंटेनेंस भी दिया, प्रॉपर्टी टैक्स भी दिया, और उसकी पड़ोसी आए कि भाई आपके बाथरूम से पानी लीक कर रहा है, आपने उसको बनवा करके भी दिया, सारी चीजें करी, पार्किंग में झगड़ा हो गया उसको भी आपने ठीक से करा के दिया, सारी जो परेशानियां हैं वो आपने पूरी करी, तो आपको 40,000 पर मंथ यानी कि 4,80,000 रुपए आए एक साल में। और नियम ये कहता है कि करीब करीब 1% के आसपास आपका खर्चा हो जाएगा उस प्रॉपर्टी को मेंटेन करने में। तो 4,80,000 में से 2 लाख रुपए चले गए 480 में से, तो यानी 2,80,000 3 लाख रुपए आपके हाथ में आए, यानी 2 लाख आपने 2 करोड़ रुपए लगाया। सबसे पहले मेहनत करके 2 करोड़ रुपए कमाए, उसके बाद आपने उसको लगाया, और उसके बाद उसकी मेंटेनेंस के लिए दौड़ भाग भी करी, तब जाके आपके हाथ में आए 25,000 रुपए महीने के। और अगर यही 2 करोड़ रुपए आपने एन्युटी प्लान में लगा दिए होते, तो मैंने पिछली स्लाइड में बताया था 5.77 यानी 11,94,000 रुपए हम आपको एक साल में देंगे, यानी 96,000 पर मंथ आपको आएगा। कहीं जाने की जरूरत नहीं है, कोई मेंटेनेंस, कोई प्रॉपर्टी टैक्स, कोई किराएदार, कोई प्रॉब्लम नहीं, घर पे बैठिए। अमन जी, पेंशन जब मिलनी शुरू होती है, आपने देखा होगा लोगों को अपना जीवन पत्र देना पड़ता है, यानी लाइफ सर्टिफिकेट जाके जमा करना पड़ता है कि भाई मैं अभी जीवित हूं। उसके बाद फिर 1 साल तक पेंशन आती है, फिर उसको रिपीट करना पड़ता है, फिर 1 साल तक पेंशन आती है। हमने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करते हुए सेल्फी में लाइफ सर्टिफिकेट डाल दिया है। आप मुस्कुराते हुए सेल्फी खींच के हमें भेज दीजिए, और आपका जो खुशनुमा चेहरा हमें मिलेगा, उससे आपकी लाइफ सर्टिफिकेट जमा हो जाएगी। आपको कहीं आने जाने की जरूरत नहीं। आप एंजॉय करते हुए अपने परिवार के साथ अपने बेड में, या अगर आप अपने सोफे में बैठ के भी खींच के भेजते हैं, तो ये हमारे पास आ जाएगा। आपका पैसा है, मेहनत से कमाया है, शांति से एंजॉय करिए, कहीं दौड़ने भागने की जरूरत नहीं है। तो दीपक जी, जो मैं समझ पा रहा हूं इसमें, वो ये समझ पा रहा हूं कि अगर प्रॉपर्टी ली, बहुत टेंशन ली, पैसा कमाया, प्रॉपर्टी ले भी ली, 2 करोड़ रुपए, पहली बात तो ऐसा मुमकिन है कि ज्यादातर लोग लोन लेके प्रॉपर्टी लेंगे, तो उसका भी ब्याज भरेंगे, उसका भी इंटरेस्ट पे करेंगे।
बिल्कुल। और अगर मान लो वो 2 करोड़ रुपया मैंने ही इकट्ठा करके प्रॉपर्टी लिया, तो उसमें जो भी मरम्मत होएगी घर की, जो भी पैसा लगेगा वो भी गया, हाँ। मकान खाली रहेगा उसका भी पैसा नहीं आया, Correct. और उसका मेरे को इनकम भी देनी डील पड़ेगा। होएगा और उस पे टैक्स भी देना पड़ेगा। बिल्कुल। तो यानी कि, और वैसे भी आजकल रेंटल और कम हो गए हैं, बिल्कुल बिल्कुल। और अगर मैं और उसकी रेंटल की कोई गारंटी भी नहीं, जैसे अभी बिल्कुल। आपने हाल ही में देखा होगा पिछले 3 महीने में रेंटल वैल्यू काफी नीचे गई है, लोग घर छोड़ के चले गए। बिल्कुल। तो अगर ऐसे में अगर किसी ने कोटक का एन्युटी प्लान लिया होता, बिल्कुल। तो वो गारंटेड अमाउंट इररिस्पेक्टिव ऑफ एनी एनवायरमेंटल चेंजेस, वो अमाउंट हमें आता रहता। बिल्कुल सही, बहुत सही अमन जी आपने बताया, ये बिल्कुल आराम से आपको मिलेगा। और एक आपने और खुश करने वाली बात बताई कि अपने मुस्कुराते हुए सेल्फी खींच के भेजना है, आपको आके कहीं पे दस्तखत नहीं करने। वो जीवन आपने एक वर्ड यूज करा, क्या था वो दीपक जी, क्या देना पड़ता है हमें? लाइफ सर्टिफिकेट, जीवन लाइफ पत्र। सर्टिफिकेट, वो भी सेल्फी के जरिए हम भेज पाएंगे। कोटक में हमने पूरा डिजिटल कर दिया है, आपको बिल्कुल परेशानी ना हो। आप अगर अभी हमारे को 2 करोड़ रुपए हमारे साथ लगाना चाहते हैं, जिन्होंने आपको इनवाइट किया है वो एक्सपर्ट हैं एनवीटी के, आप उन्हें सिर्फ फोन कर दीजिए, वो आपकी सारी फॉर्मेलिटी कर देंगे। आपका फॉर्म हमारे पास डिजिटल वे में आ जाएगा, आपको किसी को अपने घर बुलाने की जरूरत नहीं है। इस कोविड की सिचुएशन में जब आपको वैसे ही डर लग रहा है कि कहीं से कोई वायरस या इन्फेक्शन ना आ जाए, इसलिए हमने क्या किया है, अपने ग्राहकों के लिए पूरा सिस्टम डिजिटल बना दिया है। आपको किसी को अपने घर बुलाने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ उन्हें फोन करिए, जो आपके हितैषी हैं, जिन्होंने आपको इनवाइट किया है इतने बढ़िया वेबिनार में, आप उन्हें बुलाइए और उनको फोन कर दीजिए, सारे डॉक्यूमेंट सब कुछ आपका डिजिटल हो जाएगा और आपकी कॉपी भी आपको बाय मेल आ जाएगी। और उसके बाद सर्टिफिकेट ऑफ एग्जिस्टेंस आपको अपने आप, यानी सेल्फी खींचिए भेजिए। आप इंडिया में हैं या किसी दूसरे विदेश में हैं, कोई परेशानी नहीं है, सेल्फी खींचिए भेजिए। उसके बाद आप 40 साल जीवित रहते हैं, आपकी परेशानी पूरी तरह से अलग। पैसे आपके हैं, एंजॉय आपको करना है, और वो तैयारी हम करके देंगे, क्योंकि हमारा मोटो है, हमारा टैगलाइन है, हम हैं हमेशा। क्या बात है दीपक जी। तो अब मेरे को ना सही मायने समझ आ रहे हैं उस लाइन के, जो मेरे को इतने दिनों से एसएमएस आ रहे थे, स्वाभिमान से आत्मनिर्भरता की ओर। मैंने बहुत कोशिश करी, मेरे को आइडिया तो लग रहा था ये पेंशन के लिए, पर जब आपने ये मेरे को इतने बेहतरीन तरीके से समझाया और बताया है, और मेरे थ्रू उन सारे लोगों को जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, अब मैं ये समझ पा रहा हूं कि व्हाट इज दिस जर्नी ऑफ फ्रॉम स्वाभिमान आत्मनिर्भरता तक। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और अमन जी, मेरा पिटारा भी खाली नहीं हुआ है, मेरे पास कुछ और बहुत बढ़िया ऑप्शंस है। एक है फिक्स टर्म गारंटी वाला, टर्म गारंटी, यानी आप अपनी पेंशन एक मिनिमम अवधि के लिए फिक्स कर सकते हैं, वो चाहे 5 साल हो, 10 साल हो, 15 साल हो या 20 साल हो। आपको यहाँ पे एग्जाम्पल में 20 साल का दिखा रहा हूं। किसी व्यक्ति ने अपने 20 साल की पेंशन हमसे गारंटी करा ली कि भाई मेरे को कुछ भी हो 20 साल तक पेंशन मिलेगी। इसमें 2 संभावनाएं बन सकती हैं। पहला कि व्यक्ति 20 साल से ज्यादा जीवित रहे, और दूसरा व्यक्ति 20 साल से कम जीवित रहे। सबसे पहले मैं आपको सिनारियो 1, यानी 20 साल से ज्यादा व्यक्ति अगर जीवित रहता है तो हम पेंशन उसी रेट से कंटिन्यू करेंगे। व्यक्ति 60 साल का था, हमसे 20 साल की गारंटी लिया, हमने 20 साल तक तो पेंशन दे दी, मगर अभी भी उनका जीवन है, वो जब तक इसके बाद जीवित रहेंगे उसी रेट से पेंशन उनकी आती रहेगी जब तक वो जीवित है। मान लीजिए 60 साल के थे और वो 90 साल तक जीवित रहे, तो यानी 30 साल तक हम उनको पेंशन देते रहेंगे उसी रेट से, गारंटी। मान लीजिए दूसरा सिनारियो, अगर उन्होंने हमसे पेंशन ली 20 साल के लिए, मगर उनकी मृत्यु 5 साल बाद ही हो गई। 5 साल की मृत्यु हो जाने के बाद भी हम अगले 15 साल तक लगातार उनको पेंशन देते रहेंगे, क्योंकि हमारी गारंटी थी कि कम से कम 20 साल तक तो हम पेंशन देंगे ही देंगे, तो अगले भी 15 साल हम देंगे, यानी मिनिमम 20 इयर्स की तो गारंटी इसमें होगी। और ये गारंटीड होगा। अमन जी, अगर आप इसमें थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं तो आपको अमाउंट भी दिखाई पड़ेगी कि अगर कोई व्यक्ति जो 60 साल का है 1 करोड़ रुपए देता है और 85 तक जीवित रहता है, यानी 25 साल, तो 1 करोड़ उन्होंने दिए और हम उनको पेंशन के रूप में 1 करोड़ 88 लाख रुपीज देंगे ही देंगे। और अगर वो 20 साल से पहले उनकी मृत्यु हो जाती है तो भी 1.5 करोड़, यानी 1 करोड़ 58,000 रुपीज तो हम देंगे ही देंगे। और ये गारंटी अमन जी पता आपको मैं कब दे रहा हूं? मैं आपको आज दे दूंगा। अगर आज शाम को मुझे आप ये 1 करोड़ रुपए का पेंशन पॉलिसी लेते हैं, मैं ये गारंटी मैं आपको आज ही दे दूंगा, और ये आपके रेस्ट ऑफ लाइफ के लिए चलती रहेगी। सो दीपक जी, अभी ना 2 चीजें मेरे जहन में आ रही है और मैं अपने आप को रोक नहीं पा रहा है पूछने के लिए। एक तो मैं ये पूछना चाह रहा हूँ, आप इतने बेहतरीन तरीके से हमें ये बता रहे हैं, और मैंने आज तक, यकीन मानिए, ऐसा नहीं सुना था कि अगर मैं नहीं भी रहा
तो भी पेंशन मेरे घर पे आ रही है। बिल्कुल। और वो भी एक आप बता रहे हैं कि ऐसा एक ऑप्शन है आपके पास जिसमें आप ऑलरेडी टर्म फिक्स कर देंगे। मानिए आपने 20 साल कर दिया और भगवान ना करे अगर 6 साल बाद 7 साल बाद मुझे कुछ हो जाता है तो भी वो पेंशन पूरे 20 साल तक मेरे परिवार को मिलती रहेगी। बिल्कुल अमन जी, यही खूबसूरती है इस प्लान की कि जैसी परिस्थिति हो, जैसा आपके पास रकम हो, जैसी आपकी पारिवारिक स्थिति बनती हो, आप उस अनुसार हमसे ले सकते हैं। और आगे और भी है, मैं आपको और भी बताता हूं। अभी तक तो मैंने आपको एक लाइफ के बारे में बताया, यानी एक व्यक्ति की पेंशन। आगे मैं आपको दो के बारे में बताता हूं, क्योंकि अमन जी मेरा ये मानना है, देखिए मेरी शादी को करीब 21 साल हो चुके हैं। मुझे ऐसा कभी भी ध्यान नहीं आता कि मैं ऑफिस के लिए जा रहा हूं और वाइफ ने कहा हो कि भाई आज आप निकल जाओ, मेरे मन नहीं था तो ना मैं आपको नाश्ता दूंगी और ना ही मैं आपको टिफिन भी बना के दूंगी। तो कई बार तो ऐसा भी हुआ अमन जी कि मुझे ये नहीं पता होता था कि मेरे बच्चे के किसी एक सब्जेक्ट में कितने चैप्टर हैं, मगर उसने पूरा ध्यान रखा, परिवार पीछे से चलाती रही और उसने मेरा भी ध्यान रखा, जिसकी वजह से मैं अपना ध्यान काम पे लगा सका। तो मैं उसके बारे में ना सोचूं, मैं सिर्फ अपने बारे में सोचूं, मैं हमेशा ये इंश्योर करूंगा कि उसको भी पेंशन आए। ऐसे जैसे मैं अपना एग्जांपल ले रहा हूं, ऐसी बहुत सारी महिलाएं होंगी जो अपने घर को पूरी तरह से, जैसे संयुक्ता है, अपने घर को पूरी तरह से संभाल के रखा हुआ है और दोनों तरफ ध्यान दे रही हैं, घर भी चल रहा है, प्रोफेशन भी चल रहा है। तो सबसे पहले मैं सभी महिलाओं को, संयुक्ता आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा। आप लोग कम्युनिटी में, सोसाइटी में, इस देश में जो आपका कंट्रीब्यूशन है उसका कोई मुकाबला नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद जो आप हमें इतना अच्छा मौका देते हैं इस देश को आगे बढ़ने में और फ्यूचर को तैयार करने में। जो आपका कंट्रीब्यूशन है वो अतुलनीय है, उसकी कोई मुकाबला नहीं किया जा सकता, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद। और इसीलिए हैप्पी दीपक जी दैट आप ये जो वर्किंग वुमेन कम्युनिटी के बारे में सोच के एक स्पेशल सोल्यूशन के जिक्र किए, क्योंकि बहुत सारे और हमारे पास क्वेश्चंस तो मेरी इनबॉक्सेस ओवरफ्लो कर रही है। सो एक्चुअली दिस क्वेश्चंस आर कमिंग एंड आई एम सो हैप्पी दैट यू आर लुकिंग एट दिस पर्सपेक्टिव आल्सो, और हम हर किसी के ख्याल रखते हैं। आगे बढ़ते हुए बिल्कुल संयुक्ता जी, अमन जी, इसमें हम 2 जीवन का पेंशन लेते हैं, जो 2 जीवन का, यानी हम यहाँ पे जैसे एग्जांपल है, हम मिस्टर ए मिसेज ए दोनों का पेंशन देंगे और मिस्टर ए की मृत्यु हो जाने के बाद हम उनकी वाइफ को पेंशन देंगे और उनके मृत्यु के बाद ये सारा पैसे उनके परिवार वालों को वापस भी कर देंगे। यानी आपने जीवन जीते जी आपने पूरा पेंशन लिया और बाद में अपने परिवार के लिए आप विरासत भी छोड़ के गए। तो अमन जी और संयुक्ता जी, ये मुझे लगता है ये ऑप्शंस आपको अच्छे लगे होंगे, और अगर आपकी उम्र 60 साल होती तो शायद आप आज ही हमारे फॉर्म साइन कर देते। बिल्कुल दीपक जी 60 साल नहीं, मेरे क्वेश्चन इनबॉक्सेस और अभी तो शायद मुझे लग रहा है व्हाट्सएप भी कोलैप्स करने वाले हैं। पहले जो मैक्सिमम क्वेश्चन हमारे पास आ रहे हैं वो है 35 to 45 की एज ग्रुप के लोगों के बारे में, लोगों से जो पूछना चाहते हैं कि इतना बढ़िया अपॉर्चुनिटी, लेकिन शायद हम थोड़ा लेट की बात करें, लेकिन आपने ये भी दिखाया हमें कि जब तक हम उस एज तक पहुंचेंगे तब तक हमारे लिए पीपीएफ और शायद एफडी काम ही नहीं आएंगे। तो हम कैसे तैयार हो जाए, हम कैसे शुरू करें अपना जर्नी। और ये क्वेश्चन के साथ मैं ओपन करती हूँ मेरी क्वेश्चन बैंक। सो दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन टू यू दीपक। पहले संजीव साहब, पहले मैं जितने भी हमारे गेस्ट हैं, सबसे पहले मैं रजत सर को धन्यवाद देना चाहूंगा कि उन्होंने इतना बेहतरीन वेबिनार अपने लोगों के लिए ऑर्गेनाइज किया, और मैं उन लोगों को धन्यवाद देना चाहूंगा, मैं अपने सारे गेस्ट को धन्यवाद देना चाहूंगा जो आज हमारे बीच आए, और उन लोगों को जिन्होंने इनवाइट किया। मुझे पता है रजत सर कि आपने 3 सीट, एक व्यक्ति को 3 सीट अलाउ करी थी कि आप अपने 3 गेस्ट को बुला सकते हैं। तो इसका मतलब जिन्होंने भी आपको इनवाइट किया है, आप उनके लिस्ट में पहले 3 में आते हैं, आप उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। जो आपको इन्विटेशन उन्होंने दिया है, मैं आप सभी से गुजारिश करूंगा कि आप अपना हैप्पी रिटायरमेंट हमारे साथ प्लान करिए, और मैं इसी कामना के साथ आगे बढ़ता हूं। संयुक्ता जी, अब हम क्वेश्चन आंसर के लिए शुरू करेंगे। हाँ दीपक जी, संयुक्ता जी, मैं बताना चाहूंगा हमारे साथ इस वक्त लगभग 20,000 लोग जुड़े हुए हैं। क्या बात है। सवालों की बौछार हो रही है, संयुक्ता जी भी देख पा रही होंगी उन्हें, सवालों की बौछार हो रही है। इतने सारे सवाल आ रहे हैं कि मैं सारे पढ़ नहीं पा रहा, मेरे को जल्दी स्क्रॉल करना पड़ रहा है। तो अभी और सारे सवाल आपके लिए आ रहे हैं दीपक जी, क्या बात है। सारे लोग आपसे सवाल पूछना चाह रहे हैं। संयुक्ता भी उन सवालों को देख पा रही है अपनी स्क्रीन पे मेरे साथ साथ। Yes, that's what I'm saying. Thank you, Aman. Before I open the questions, next,
15 मिनट में हम सिर्फ आपको ये बताना चाहते हैं, आपके सारे सवाल हम पढ़े हैं, हमारे ग्रुप एक टीम ऑफ 10 पीपल आर सिटिंग जस्ट रीडिंग योर क्वेश्चंस, और उस क्वेश्चंस को हम खास 5 या 7 हिस्सों में बांटे हैं, एंड आई एम श्योर ये 7 से 10 सवाल में आपके हर एक सवाल का जवाब रहेगा. इवन इफ नॉट सो, our representatives next 24 hours में जो भी आपको इनवाइट किए वो आपके द्वार तक पहुंचेंगे थ्रू डिजिटल मीडिया और मे बी फिजिकली, और आपको देंगे एक बेहतरीन टेलर मेड सोल्यूशन. So with your permission, Deepak ji and Aman ji, can I come to the questions because the Yes. बिल्कुल, बिल्कुल. is really high. So the first question is from Mr. Prashant Muthuswamy, Kochi. Oh my Wow. God, we have people joining from all over the country. Yeah. And the first question is, Deepak ji, आपने 2 करोड़ का बहुत बेहतरीन सपना दिखा है. इनका सवाल है, अगर मेरे पास 50 से 70 लाख अभी है, क्या हम आपके लिए कुछ करके दे सका, क्या हम उनके लिए कुछ सोल्यूशन दे सकते हैं? So I'll just translate since this comes from Kochi. In case there is a kitty of only 50 lakhs and not 2 crores, can we design a retirement solution? Over to you, Deepak ji. संयुक्ता जी, प्रशांत जी, बहुत बहुत नमस्कार. आपका क्वेश्चन, क्या मैं 70 लाख रुपए से भी ये प्लान शुरू कर सकता हूं? बिल्कुल प्रशांत जी, यू कैन स्टार्ट दिस प्लान विद 70 लाख रुपीज ऑल्सो, एंड योर रेट ऑफ एन्युटी विल रिमेन द सेम विच वी हैव शोन यू राइट नाउ. Thank you so much. That's so interesting. Now, ये क्वेश्चन बहुत सारे जगह से आए हैं, but I will pick up one question of Mr. H.L. Bajaj, Defense Colony, Delhi. So, Mr. H.L. Bajaj writes, his own age is 70 years, 70 साल है, and इनका बेटा यूएस में रहते हैं, न्यूयॉर्क में रहते हैं. तो इनका सवाल है, बेटे का उम्र है 38 साल, एंड और एक दूसरे जो बड़ा बेटा है जो सिडनी में रहते हैं, उनकी उम्र है 46 साल, सॉरी 46 इयर्स. सो क्या इनके बच्चे बाहर रह के इंडिया ना आके क्या ये बेनिफिट ले सकते हैं? क्योंकि ये दोनों जो देश है, ऑस्ट्रेलिया एंड यूएसए, दोनों जगह पे ब्याज की जो रेट है, इंटरेस्ट रेट्स आर रियली लो, एंड दे कैन नॉट प्लान इन रिटायरमेंट विद दीज रेट्स. सो ओवर टू यू, दीपक जी. नमस्कार बजाज साहब, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है. आपके दोनों बेटों के लिए हम बहुत अच्छी प्लानिंग कर सकते हैं. जिन्होंने आज आपको इनवाइट किया है यहाँ पे, हमारे पास प्रीमियर पेंशन प्लान है और भी बहुत सारे प्लान हैं छोटे बेटे के लिए और बड़े बेटे के लिए, क्योंकि अभी उनके पास एक्यूमुलेशन स्टेज है, उनके पास समय है पैसा जमा करने के लिए. आप उन्हें एक बार बुलाइए. हमारे पास प्रीमियर पेंशन है, स्मार्ट लाइफ है, प्रीमियर लाइफ है, हमारे पास बहुत सारे प्लान हैं. उनकी उम्र, आपकी जरूरत अनुसार जो भी बेस्ट होगा वो उनकी जरूरत को देखते हुए अब वो रिकमेंड कर देंगे और वो प्लान ले सकेंगे. और अगर आपके बेटे चाहें तो आपका पेंशन ऑस्ट्रेलिया या यूएस में बैठ के भारत में भी शुरू कर सकते हैं, यानी वो पे करके अपना पेंशन आपके लिए शुरू करा सकते हैं. तो उन्हें आना नहीं पड़ेगा इंडिया. सो पॉइंट नंबर 1, दे डोंट नीड टू कम टू इंडिया. और इस कोविड सिचुएशन में क्या हम इनको ये पॉलिसी इशू करेंगे? ये सेकंड क्वेश्चन है, बिकॉज बहुत सारे लोग ये भी क्वेश्चन पूछ रहे हैं दैट पीपल स्टेइंग अब्रॉड, क्या उनको अभी कवर में क्या वो हमारे पॉलिसीज ले सकते हैं? दीपक जी. बिल्कुल संयुक्ता, जैसे मैंने बताया, कोटक लाइफ ने हमने अपना पूरा प्लेटफॉर्म डिजिटल कर दिया है. आपको कहीं आने जाने की जरूरत नहीं है. प्रीमियर पेंशन प्लान अगर आप हमसे लेते हैं उसमें कोई मेडिकल आपका नहीं होता, यानी बिना मेडिकल रहते हुए कोविड सिचुएशन में भी आप हमारे प्लान्स ले पाएंगे. तो दीपक जी, इसी से मिलता जुलता एक सवाल आया था अब से 5 मिनट पहले बख्शी जी का. उनका सवाल बहुत मिलता जुलता था, पर वो ये पूछ रहे थे अगर वो बाहर रहते हैं तो उन्हें मेडिकल करवाने कैसे, जैसे मेडिकल करवाना पड़ता है तो पॉलिसी लेने के लिए या फिर ऐसा इन पेंशन के लिए, तो उसके लिए क्या प्राविधान है और क्या हमने प्रयोजन किया हुआ है? अमन जी, खुशखबरी ये है कि जो हमने एन्युटी प्लान बताया उसमें भी कोई मेडिकल नहीं है. हमने जो पेंशन प्लान के बारे में जानकारी दी उसमें भी कोई मेडिकल नहीं है. दोनों में आप भारत में रहते हो या एनआरआई हो, दोनों ही सिचुएशन में आपकी कोई मेडिकल इसमें नहीं आती. ऑलराइट. और दीपक जी, एक और सवाल है जो कि आप पहले एड्रेस कर चुके हैं, पर फिर भी बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं, तो इसीलिए मैं एक बार उनके बिहाफ पे मैं ये दोहरा रहा हूं. मिस्टर चावला का ये सवाल है और भी कई लोगों ने पूछा है. वो ये जानना चाह रहे हैं कि जैसे आज उन्होंने ये प्लान लिया और जो प्रतिशत, जो परसेंटेज ऑफ एन्युटी आप उन्हें बताएंगे, जो देंगे, जो रिटर्न में आएगी,
कल को अगर इंटरेस्ट रेट सरकार कम करती है, बैंक कम करते हैं, तो क्या वो नहीं नीचे गिरेंगे क्या इंटरेस्ट रेट? अमन जी, दो चीजें हैं। देखो, जैसे आज 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 है 14 जून। 14 जून, ये जो रेट्स हम लोग आज बता रहे हैं ये जून के लिए हैं। अगर किसी के विचार में है कि मैं पेंशन प्लान लेना चाहता हूं, मगर उन्होंने इस महीने हमसे प्लान नहीं लिया, अगले महीने आते हैं तो अगले महीने का रेट मिलेगा। और अगर वो आज ही तय कर लेते हैं और हमारे प्लान पे एंट्री कर लेते हैं, कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लेते हैं, तो उनको यही रेट पूरे जीवन तक मिलेगा। ये तो बहुत बढ़िया है दीपक जी। So Aman, I think you have one more question in your inbox. एक बार if you can please read from Mr. Nagesh Kuknur, can you please read that? उनका क्वेश्चन तो नहीं दिख रहा इस टाइम। जो मेरी स्क्रीन पे सवाल मेरे को आता हुआ दिख रहा है, जो अभी अभी आया है, मिस्टर नरेश शर्मा जी पूछ रहे हैं, ये बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है दीपक जी। ये पूछ रहे हैं कि मैक्सिमम कितना इसमें लिया जा सकता है। इन्हें इतनी बेहतरीन लगा आपका पूरा जो आपने बताया इन्हें पेंशन के बारे में, कि मैक्सिमम कितना अमाउंट ये इन्वेस्ट कर सकते हैं हमारे साथ। नाम क्या बताया आपने? नरेश शर्मा जी। नरेश शर्मा जी, बहुत बहुत नमस्कार। देखिए, इसमें कोई मैक्सिमम अमाउंट का लिमिट नहीं होता। आपकी पेंशन की कितनी जरूरत है उस अनुसार आप हमें पैसा देंगे और उतनी पेंशन, मान लीजिए आपको 3 लाख रुपए की पेंशन हर महीने चाहिए, तो आप उस अनुसार जो भी जिन्होंने आपको इनवाइट किया है उनसे पूछिएगा, वो तुरंत आपको कैलकुलेट करके बताएंगे। इसमें कोई लिमिट नहीं होती। हमें तो आपकी जरूरत पूरी करनी है। आपकी रिक्वायरमेंट हो सकता है महीने की 1 लाख की पेंशन की हो, 2 लाख की हो, 3 लाख की हो, 5 लाख की हो, इसलिए कोई इसमें लिमिट नहीं है। हम तो आपकी जो जरूरत होगी उस अनुसार आपको पेंशन देना शुरू कर देंगे और उस हिसाब से आपकी रकम आपको लगेगी। कुकनूर जी के सवाल मेरे पास है दीपक जी, एंड बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है। अगेन आई एम वेरी वेरी इंटरेस्टेड बिकॉज कुकनूर जी हैज जॉइंड अस फ्रॉम लंदन। ही इज प्रैक्टिसिंग डॉक्टर, लंदन हर मैजेस्टीज हेल्थ सर्विसेज में प्रैक्टिस करते हैं। और इनका सवाल है, इनका जो पेंशन की प्लानिंग होती है हर मैजेस्टीज सर्विस से, क्यूरॉप्स जिसको बोलते हैं, क्या हम क्यूरॉप्स ऑफर कर सकते हैं हमारे प्रोडक्ट के थ्रू? क्या वो अपने जो रिटायरमेंट फेज है इंडिया में जो बिताना चाहते हैं, क्या वो उस फेज में ये प्रोडक्ट वो अडॉप्ट कर सकते हैं? क्योंकि नेक्स्ट ईयर ही इज प्लानिंग टू कम बैक टू इंडिया। ओवर टू यू। नमस्कार कुकनूर जी, सबसे अच्छी खुशखबरी मैं आपको दूं, हमारा जो प्रोडक्ट है लाइफ टाइम इनकम प्लान, ये एक क्यूरॉप्स रजिस्टर्ड प्रोडक्ट है, यानी इसका अपना खुद का एक क्यूरॉप्स नंबर है। जो भी लोग इस समय यूके में रहते हैं और भारत आना चाहते हैं और अपनी पेंशन भारत में लेना चाहते हैं, आपका यूके का पूरा पेंशन फंड आप हमारे लाइफ टाइम इनकम प्लान में ट्रांसफर कर सकेंगे, क्योंकि हमारा प्रोडक्ट वहां की HMRC हर मैजेस्टी रेवेन्यू एंड कस्टम्स डिपार्टमेंट में रजिस्टर्ड है और उसको लाइसेंस है, और इसीलिए आप उसके थ्रू भी अपना पेंशन ले सकेंगे। यानी यूके में जो आपने कॉर्पस बनाया है उसे आप हमारे साथ ट्रांसफर कर दीजिए और आपकी पेंशन भारत में शुरू हो जाएगी। So I have one question. I think it has been repeated, but क्योंकि लगातार आ रहे हैं, मैं वापस कंफर्म करने के लिए और सबके कंफर्मेशन के लिए वापस आपको पूछ रही हूँ। इसका काउंट मैक्सिमम आया है, तकरीबन 150 लोग ये क्वेश्चन पूछे हैं। क्या हमारी पेंशन MIS की तरह इमीडिएटली चालू हो जाएगी? आज अगर हम पैसा इन्वेस्ट करते हैं, क्या हमारी पेंशन इमीडिएटली चालू हो जाएगी? बिल्कुल संजुक्ता जी, जैसे ही हमें पैसा मिलता है अगले महीने से पेंशन चालू हो जाती है। इसमें इस तरीके से काम होता है, मान लीजिए आज 14 तारीख को आपने अपना कॉन्ट्रैक्ट शुरू किया है, तो हम अगले 16 दिन की पेंशन आपको देंगे और अगले महीने से पूरे महीने की पेंशन आपको देंगे। तो आप जब भी देंगे उसी के तुरंत बाद पेंशन आपके अगले महीने से पेंशन आपकी चालू हो जाती है। मुझे लगता है संयुक्ता जी, अमन जी, नॉर्थ ईस्ट के लोग भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मुझे बहुत खुशी होगा, गुवाहाटी, असम, कहीं से भी आपको क्वेश्चंस आए तो आप हमसे पूछिए। मेरे दिल की बात कर रही है। सीरियसली आई डोंट नो हाउ इज दिस हैपनिंग, बिकॉज़ नॉर्थ ईस्ट से एक मेजर 250 पीपल हैव जॉइन्ड इन फ्रॉम ऑयल इंडिया दुलियाजान। 250 पीपल हैव जॉइन्ड इन फ्रॉम ऑयल इंडिया दुलियाजान। क्या बात है। क्वेश्चन की बौछार आ रहे हैं। इनफैक्ट आई वुड आल्सो लाइक टू शेयर, क्योंकि हमने इतना बेहतरीन सॉल्यूशंस शेयर किए हैं that really so I will ask our Jorhat team and Tinsukia teams to go and get contacted because they want the presentation as soon as possible. Wow. बहुत मुबारक आपको, और like it was an amazing thing. So the one more question that is coming up is, अगर
मान लीजिए हम ये एन्युइटी, और आपने जिक्र किया था कि हम रिटर्न ऑफ परचेज प्राइस जो बता रहे थे आपकी, हम परचेज प्राइस रिटर्न करते हैं, तो क्या इसका मतलब ये है कि ये ऐसा प्रोडक्ट है जहां पे हम नहीं रहने पे भी मेरी फैमिली को एक कवर मिलती है? हम नेक्स्ट जनरेशन को क्या ये वेल्थ ट्रांसफर के हिसाब से एक देख सकते हैं? इज इट पॉसिबल? बिल्कुल संयुक्ता जी, सबसे पहले मेरे नॉर्थ ईस्ट के जितने गेस्ट हैं नमस्कार, और जितने मेरे दोस्त एंड भाई लोग हैं कुटक के, उनको भी बहुत बहुत नमस्कार। तो इसी के साथ संयुक्ता ये क्वेश्चन को आगे लेते हुए, क्या जो मैं रिटर्न ऑफ परचेज प्राइस वाला ऑप्शन है उसको विरासत देने के काम में ला सकता हूं, क्योंकि पैसा अगले जनरेशन को जाएगा? बिल्कुल, ये आपकी स्टेट प्लानिंग का सबसे बढ़िया तरीका है। आप अपने पैसे को पहले एंजॉय करें और बाद में विरासत के रूप में, यानी इसको इंग्लिश में क्या शब्द कहते हैं, एज ए वो उनका लेगेसी आप अपने बच्चों को और अपने परिवार वालों को दे सकते हैं। बहुत बढ़िया क्वेश्चन था। So दीपक जी, आपके क्वेश्चन की जो आपने आंसर दिए, so this is the beauty of this live environment जहाँ पे क्वेश्चन के आंसर पे भी रिमार्क्स आते हैं। So I have a remark. It is not a question, but मैं एक्चुअली अपने दर्शकों के साथ ये शेयर करना चाहूंगी, बहुत पर्टिनेंट है। So Mr. Rajinder Kapoor writes from Ludhiana that इसका मतलब शायद हमें अपने बेटे और बेटियों में फर्क करने का जरूरत नहीं पड़ेगा, एंड बिना लिटिगेशन की हम वेल्थ को ट्रांसफर कर सकते हैं अपना बेटियों को भी और बेटों को भी, और हमें कोई भी एसेट को, वी डोंट हैव टू डिवाइड एसेट्स। इज माय अंडरस्टैंडिंग करेक्ट? कपूर जी बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे को सबसे अच्छा लगा आपका सवाल सुन करके कि आप बेटे और बेटी को एक समान देखते हैं और उन दोनों को ही अपनी लेगेसी का पार्ट बनाना चाहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आप जैसे उच्च विचार के लोगों से ही आज दुनिया जो है कायम है और इतनी खुशनुमा है। बिल्कुल, आप नॉमिनी में दोनों का नाम लिख सकते हैं और ये जो कॉर्पस है वो आपके बेटे को भी जाएगा, बेटी को भी जाएगा। So being a female, कितना बढ़िया बात आपने बताया दीपक जी। So now I have another very very interesting question coming up, and again this comes from our guest from, I don't know अगर आप ये जगह के नाम सुने होंगे। So this comes from Nagaon, which is in between Guwahati and Jorhat. So we have a question from the farthest northeast Nagaon. Wow. हाँ, so ये question ऐसा है, मेरा उम्र, the question is, I am 65 years and my wife is 58 years. कैसे हम दोनों का पेंशन बहुत बेहतरीन तरीके से, क्योंकि 58 years wife is about to retire in 2 years and the gentleman has already retired. तो क्या ये कर सकते हैं अपने रिटर्न को और बेहतर बनाने के लिए, क्योंकि ये चिंतित है, इनका पैसा अभी पूरा FD में है। ओहो जी, संयुक्ता जी क्या नाम बताया आपने? So this comes from Mr. Pramothesh Borua and he is from Nagaon. This is the place मैं जाती रहती हूँ between Jorhat and Guwahati. Very good. प्रमोदेश बोरुआ जी नमस्कार। आपका जो सवाल है कि जो आपका ज्वाइंट लाइफ आप लेना चाहते हैं कि पेंशन आपको आए, आपके वाइफ को आए, बिल्कुल ये नहीं पड़ेगा। ये पेंशन प्लान आप ले लेंगे और दोनों को ही, दोनों के जीवन रहते रहते ये इसमें आप दोनों को पेंशन मिलेगी और बाद में पैसा आपके परिवार वालों को वापस कर दिया जाएगा। मैं समझ पाया इस बात से, यदि हस्बैंड और वाइफ की एज में डिफरेंस ज्यादा है तो उस बात का कोई लिमिटेशन नहीं है ये प्लान लेने से। बिल्कुल बिल्कुल। तो एक दीपक जी मैं भी सवाल लेना चाहूंगा, बहुत सारे आ रहे हैं संयुक्ता और मैं देख रहे हैं उन सवालों को। कानपुर से मिस्टर रवीश का सवाल आया है। तो ये 32 इयर्स इनकी एज है और ये कह रहे हैं कि मेरे को बहुत ही बेहतरीन लगी सबसे पहले तो आपकी ये पूरी प्रेजेंटेशन, और मैं आज ही इसके बारे में कुछ करना चाह रहा हूं। तो मेरे को बताइए कि मेरे लिए क्या सही निर्णय होएगा 32 साल की उम्र में, कैसे मैं पेंशन के लिए कुछ कर सकता हूँ? और ये मेरी भी क्वेश्चन है दीपक जी, क्या हमारे एज ग्रुप के सबके लिए? बिल्कुल रवीश जी बहुत बहुत नमस्कार। और आपका क्वेश्चन कि 32 साल, सबसे पहले तो मेरा कांग्रेचुलेशन आप स्वीकार करें कि 32 साल की उम्र में भी आप अपने पेंशन के बारे में सोच रहे हैं। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी। अगर आप जैसा सब सोचने लगेंगे तो शायद जिस वजह से हमने वेबिनार करा है वो सफल हो जाएगा।
और आगे लोगों को गाइडेंस मिलेगी। हमारे पास बहुत अच्छा प्लान है। 32 साल की उम्र में आप अपना पैसा एक्यूमुलेट करना शुरू कर सकते हैं और अपने लिए एक बेहतरीन कॉर्पस तैयार कर सकते हैं। जिन्होंने आज आपको इनवाइट किया है, आप उनको तुरंत वेबिनार के बाद तुरंत आप उन्हें फोन करें और वो आपकी उम्र और जितना पैसा आप लगाना चाहते हैं बेहतरीन प्लान देंगे। पेंशन प्लान ले सकते हैं या और भी कोई प्लान ले सकते हैं, क्योंकि अभी आप अपनी जिम्मेदारी से गुजरेंगे, यानी आपके लाइफ में कई सारी जिम्मेदारियां आएंगी, आपके बच्चों की शादी, एजुकेशन। तो आप इंश्योरेंस वाला प्रोडक्ट भी आप हमसे ले सकेंगे और उससे भी एक बेहतरीन कॉर्पस बन जाएगा, यानी दो काम एक साथ हो जाएंगे। एक कि जब आप कॉर्पस कह रहे हैं दीपक जी, मैं समझ पा रहा हूं, ये वो राशि है जो मैं इकट्ठी कर लूंगा जोड़ के पैसा एक्यूमुलेशन फेज में। बिल्कुल, यानी कॉर्पस वो राशि है, वो टोटल पैसा है। अगर मैं 32 साल, रवीश जी के उस पे मैं बोल रहा हूं, अगर रवीश जी 32 साल की उम्र में पैसा जोड़ना शुरू करते हैं, हमारे जरिए एक बेहतरीन प्लान लेते हैं, एक्यूमुलेशन फेज में हर साल का एक कमिटेड अमाउंट डालते हैं, वो कॉर्पस यानी कि वो राशि जब जुड़ जाएगी 60 साल पे, उसी से वो अपनी पेंशन एंजॉय कर पाएंगे जीवन भर। बिल्कुल बिल्कुल अमन जी, उसमें दो फायदे होंगे। एक, इनका इंश्योरेंस कवर भी चलता रहेगा और साथ में इनकी रिटायरमेंट की प्लानिंग भी साथ साथ होती रहेगी। तो जिन्होंने इनको इन्वाइट किया है, तुरंत आप उन्हें फोन करें और वो आपकी उम्र और जरूरत अनुसार बेहतरीन प्लान ऑफर कर देंगे। रजत सर भी बार बार आ रहे हैं। आशा करता हूँ आप मेरे को, दीपक जी को सुन रहे हैं। इसी क्वेश्चन की वही यही खासियत है हमारी चैट की। So Gopa Mondal writes from my hometown Kolkata. Wow. Yes, so you know this is a special question. इतनी खुशी है आपके चेहरे में। I know. So the question is, तो ये जानना चाह रहे हैं, ये जो आप एक्यूमुलेशन की बात कर रहे हो, तो इनके पास इंफॉर्मेशन है। पहले हम एक्यूमुलेशन के बाद सिर्फ 33% नॉन टैक्सेबल निकाल सकते थे, लेकिन आज एनपीएस आने के बाद, और हम ये बताना भी चाहेंगे एनपीएस में कोटक इज वन ऑफ द चोजन फ्यू। सो एनपीएस आने के बाद ये राशि 60% हो गए। टोटल एक्यूमुलेशन की 60% हम नॉन टैक्सेबल निकाल सकते हैं। और अगर हम एफडी का जो मैच्योरिटी है आफ्टर टैक्सेस उसके साथ कंपेयर करते हैं, तो ये नॉन टैक्सेबल अमाउंट उससे ज्यादा होता है। एंड उसके बाद चलता है पूरा लाइफ की एन्युइटी। तो क्या ये विचार सही है? क्या आप ये बता सकते हो? बिल्कुल गोपा मैडम, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। आपने क्वेश्चन पूछा और आज आप हमारे बीच में आए। आपका जो सवाल है बहुत ही बेहतरीन है। अगर आप एनपीएस अकाउंट सब्सक्राइबर हैं, यानी आपका खुद का एनपीएस अकाउंट है, तो भी आप हमसे पेंशन ले सकते हैं, क्योंकि हमारे पास लाइसेंस है एन्युइटी प्रोवाइड करने के लिए। यानी हम एक एन्युइटी सर्विस प्रोवाइडर हैं सभी एनपीएस अकाउंट धारकों के लिए, चाहे आप स्टेट गवर्नमेंट पे हो, सेंट्रल गवर्नमेंट पे हो या किसी ऐसी जगह पे हो, या आपने खुद से ऑल सिटीजन एनपीएस अकाउंट खोला हुआ है और आप पेंशन लेना चाहते हैं, तो आप वो पेंशन हम लोगों से ले सकते हैं। और उसमें 60% पैसा आपको टैक्स फ्री मिल जाएगा, 40% से आप हमसे पेंशन ले पाएंगे। अगर आपकी पेंशन की जरूरत ज्यादा है तो आप इस परसेंटेज को बदल भी सकते हैं, यानी आप 100% से भी पेंशन ले सकते हैं। So questions का तो as I said, question सवाल मन में खत्म नहीं होती। और इतना बढ़िया जब प्रोडक्ट है, इतना बढ़िया जब एक्सपर्ट्स है, अमन जी जैसे होस्ट है, तब तो ये तो सिलसिला चलता ही रहेगा। मेजर जो क्वेश्चंस है हम एड्रेस किए हैं, और इसके बाद संयुक्ता, इसी बीच रजत सर भी हमारे साथ वापस जुड़ चुके हैं। मैं आशा करता हूँ रजत सर आप ये देख रहे थे और ये सवालों का सिलसिला भी आपने देखा, किस बखूबी से कितने सारे सवाल हमारे पास आ रहे हैं और हम असमर्थ है उन सारे सवालों को ले पाने में। यहाँ पे सबसे पहले मैं रजत सर को बता दूं, रजत सर को मैं धन्यवाद। हाँ रजत सर बोलिए। जी, मैं कह रहा हूं पूर्णतः समर्थ हैं आपके सभी सवालों के जवाब देने के लिए। मेजर क्वेश्चंस के जवाब अभी के अभी, और बाकी सभी इंडिविजुअल क्वेश्चंस के लिए हमारे प्रतिनिधि, हमारे एक्सपर्ट्स, हमारे जो रिप्रेजेंटेटिव हैं, वो आप सभी लोगों के पास इंडिविजुअली डिस्कशन के लिए, आपके इंडिविजुअल इलिस्ट्रेशंस के लिए, केस बाय केस डिस्कशन करने के लिए आपसे मिल सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं, फोन पे बातचीत कर सकते हैं, वीडियो कॉल पे बातचीत कर सकते हैं। टेक्नोलॉजी ने इतना हमारे को समर्थ कर दिया है कि हम सभी लोगों के सारे के सारे जवाबों को सटीक आंसर दे सकते हैं, और हमारे को कोई ज्यादा समय नहीं चाहिए। हम आपके सभी सवालों के सही जवाब, टेलर मेड आंसर्स फॉर दो स्पेसिफिक क्वेश्चंस आपको 24 से 48 घंटे के बीच में दे सकते हैं।
दीपक गुप्ता जी, अमन मेहता जी हमारी कंपनी के बहुत उच्च अधिकारी हैं और मेरे को ऐसी उम्मीद है कि अगर हमारे पास कुछ एक ऐसे टेक्निकल क्वेश्चंस आएंगे तो हम अमन मेहता जी और दीपक गुप्ता जी के साथ इमीडिएटली कनेक्ट कर सकते हैं। और अगर हमारे कुछ अच्छे रिस्पेक्टेड कस्टमर्स डायरेक्टली बात भी करना चाहें तो हम उनसे बात भी करा पाएंगे। तो जिसे कहते हैं कस्टमाइज्ड पेंशन प्रोडक्ट्स के बारे में आज हमने बहुत बेहतरीन बात करी और मैं तो चाहूंगा हम ये बातचीत करते रहें, क्योंकि हमारे साथ करेंटली अराउंड 20 से 25 हजार लोग ऑलरेडी जुड़े हुए हैं और अगर उनके माध्यम से हम सवाल लेते रहें तो बहुत अच्छा होगा। लेकिन जैसे हर एक अच्छी चीज का एक अंत होता है तो हमारे को शायद अगले 10-15 मिनट में इस क्वेश्चंस को सेशन को एंड करना पड़ेगा। लेकिन मेरे को दीपक गुप्ता जी की एक बहुत कमाल की बात अच्छी लगी और उन्होंने बहुत हल्के में बोल दी लेकिन मेरे दिल को छू गई। वो ये थी कि आपके बुढ़ापे में, आपकी वृद्धावस्था में आपका सबसे प्रिय मित्र, आपका सबसे डिपेंडेबल फ्रेंड कौन होता है। तो आपने बड़ा कमाल का आंसर दिया जो मैं कभी इमेजिन नहीं कर सकता था कि वो व्यक्ति जो होगा और कोई नहीं होगा, यंगर यू, यानी कि जब आप जवान थे तभी आपने अपने बुढ़ापे का मित्र ढूंढ लिया था अपने अंदर ही। क्यों? क्योंकि आपने उस समय में जो सही डिसीजन लिए, आपने उस समय में जो सही डिसीजन लिए उसका फायदा आपको बाद में मिलेगा। जो आम का पेड़ आपने जवानी में लगाया वो बुढ़ापे में उसी आम के पेड़ की मिठास आप ले पाएंगे। लेकिन एक मैं आप लोगों को कुछ सवाल सुन रहा था और मेरे फादर भी मेरे पास थे, आज संडे का दिन ही है तो हम लोग भी घर पे हैं, तो वो मेरे को प्रेशराइज करने लगे कि मैं तो रिटायर्ड आदमी हूं, मैं तो सेंट्रल गवर्नमेंट से रिटायर हुआ हूं, मेरे को तो पेंशन मिल रही है, तुम लोग क्या करोगे जो तुम तो प्राइवेट सेक्टर के लोग हो, तुम्हारे को तो कोई पेंशन नहीं मिलनी। तो इस सेशन देने के बाद आपको अपने लिए, ऑल्दो मैंने लिया हुआ है, वो कहने लगे तुम पेंशन कंट्रीब्यूशन इंक्रीज करो, तुम्हारे को एहसास नहीं है, तुम तो मेरे साथ रह रहे हो, तुम्हारे बच्चे तुम्हारे साथ रहेंगे इसकी कोई गारंटी नहीं है, तुम तो हमारी आज सेवा कर रहे हो, तुम्हारे बच्चे सेवा करेंगे, ऐसा तुम्हारे को मन में भी विचार नहीं लाना चाहिए। कर दे अच्छी बात, लेकिन जिस तरीके से हिंदुस्तान एक डेवलपिंग इकोनॉमी है और डेवलप्ड इकोनॉमी की तरफ अग्रसर है, उसी तरीके से शायद हमारे देश के अंदर भी वैसे ही चीजें आएंगी। हमारा ठीक है कल्चर बेटर है, लेकिन अल्टीमेटली हम भी उसी दिशा में अग्रसर हैं कि पेरेंट्स जो है अकेले रहेंगे और बच्चे जो है कहीं ना कहीं अपनी न्यूक्लियर फैमिली में काम धंधे की वजह से जाते रहेंगे। तो प्राइवेट सेक्टर के जो बच्चे हैं, यानी कि जिनके पेरेंट्स गवर्नमेंट में थे, पीएसयू में थे, बैंकर्स थे, उनको भी ये जरूरी है कि अपने बच्चों को आज ही जताएं ये बात कि बेटा हम लोग जितने आराम से रह रहे हैं तुम लोग शायद उतनी आराम से नहीं रह सकोगे, तो तुम्हारे को अपने लिए इस टाइम में जब सारी दुनिया सिर्फ मौज मस्ती में लगी हुई है और सोचती है अरे यार पेंशन के बारे में कौन सोचेगा, अभी तो हम 30-35 की उम्र में है, 40 की उम्र में अभी तो मस्ती का टाइम है। तो अभी मेरे को बहुत अच्छा लगा, किसी 32 साल की उम्र के कानपुर के व्यक्ति ने बताया कि मैं आज से ही सोचना चाहता हूं, तो मैं उनको मुबारकबाद देना चाहता हूं कि आप अपने बुढ़ापे के सबसे डिपेंडेबल मित्र से आज बात कर रहे थे। दीपक जी बिल्कुल 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 सही है। तो इसी के साथ रजत जी मैं आपको धन्यवाद देना चाहूंगा कि इतना बढ़िया वेबिनार आपने अपने लोगों के लिए किया और मुझे ये लगता है कि जिन्होंने आज इनविटेशन दिया है और आप उनसे 24 से 48 घंटे के अंदर मिले और उनकी एडवाइस लें और अपना कस्टमाइज सॉल्यूशन देखें, क्योंकि एक समय ऐसा आता है, जरूरी ये नहीं है कि आप कब रिटायर होंगे, जरूरी ये है कि आप किस इनकम के साथ रिटायर होंगे। मेरे ख्याल से आप सहमत हैं रजत सर? मैं बिल्कुल सहमत हूं। आपने बहुत ही कमाल की बात करी कि रिटायर तो सभी लोग होंगे। हमारे गॉड ऑफ क्रिकेट सचिन तेंदुलकर भी रिटायर हो गए। देखिए हमारे एक और मेरे बहुत रोल मॉडल हैं अमिताभ बच्चन जी, वो रिटायर नहीं हुए हैं, लेकिन सचिन तेंदुलकर जी रिटायर हो गए। लेकिन अब ये बात सोचनी पड़ेगी विराट कोहली को कि भैया मैं भी रिटायर होऊंगा। क्यों? जब सचिन तेंदुलकर जैसे रिटायर हुए तो एक दिन मेरे को भी रिटायर होना है। तो ये बहुत कमाल की बात है जो आपने बात बोली कि रिटायर तो सभी लोग होंगे, लेकिन कौन व्यक्ति कितनी इनकम के साथ रिटायर होता है वो बहुत जरूरी बात है। और दूसरी बात, एक संयुक्ता जी ने कुछ बात आप लोग कर रहे थे जो मैं सुन सका, वो ये थी कि मेरे को 60% पैसा अगर टैक्स फ्री मिलता है, मान लेते हैं मैं आज 45 साल की उम्र है मेरी और मैं 60 साल की उम्र तक 15 साल तक अच्छा खासा पैसा इन्वेस्ट करता हूं आपके बेहतरीन प्रोडक्ट्स में, जो कि एफडी बीटिंग रिटर्न्स हैं, इंटरेस्ट बीटिंग रिटर्न है, एमआईएस बीटिंग रिटर्न है, उनमें मैं पैसा अपना इन्वेस्ट करता हूं 60वें साल में,
जब शायद मेरे बच्चे बड़े हो रहे होंगे या बीच में कभी शादी होगी या हायर एजुकेशन के लिए चाहिए होगा, तो मैं 60% पैसा टैक्स फ्री निकाल सकता हूं, जबकि एफडी में पैसा मेरा सारा टैक्सेबल है एज पर माई इनकम स्लैब। भले मेरा ब्याज 2 लाख 3 लाख 4 लाख आता है, लेकिन 30% के हिसाब से उस पर टैक्सेबिलिटी लगेगी क्योंकि मेरी इनकम हाई है। वो 60% पैसा मेरे को टैक्स फ्री मिल रहा है। आपने बताया कि इसमें टैक्स का बेनिफिट है, रिटर्न बेटर है और इसमें कोई मोर्टैलिटी चार्जेस नहीं है। थोड़ा टेक्निकल शब्द है, लेकिन इंश्योरेंस चार्जेस ना होने की वजह से मेरा रिटर्न और बेहतर हो जाता है। तो ऐसी सिचुएशन में तो मैं तो कहूंगा कि भाई 5 उंगलियां घी में सर कढ़ाई में, टैक्स फ्री पैसा भी मिल गया, इकट्ठा भी मिल गया, और उसके बाद डिसाइड करेंगे कि मेरे को पैसा निकालना है या सारा का सारा पैसा पेंशन में डालना है। ये डिसीजन भी मेरे पास रहेगा। बिल्कुल बिल्कुल रजत जी। अमन जी, आप कुछ कह रहे थे? बिल्कुल रजत जी, आई थिंक बहुत ही अच्छे से आपने ये बात बताई और मेरे को बहुत पसंद आया वो वाला वाक्य आपका, 5 उंगलियां घी में और सर कढ़ाई में। सर कढ़ाई में। शुक्रिया। तो मैं आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा। आप सभी लोग हमारे पास जुड़े हैं, ना सिर्फ हिंदुस्तान के डिफरेंट कोनों से बल्कि अक्रॉस दी वर्ल्ड। कुछ लोग हमारे साथ ऑस्ट्रेलिया से जुड़े हुए हैं, कुछ लोग टोरंटो से जुड़े हुए हैं। एक क्वेश्चन हमारे पास लंदन से आया, कुछ लोग दिल्ली से, कुछ नगांव से, कुछ हमारे पीएसयू जो ओएनजीसी बताया। ओएनजीसी कोई पेंशन नहीं देता दोस्तों, उसी तरीके से ईआईएल कंपनियां कोई पेंशन नहीं देती है, लेकिन बहुत अच्छे पीएसयूज हैं हमारे को रिटायरमेंट के टाइम में बड़ा कॉर्पस देते हैं। लेकिन लंबे समय तक मैं पैसा अपना मैनेज कर सकूं ये कोई जरूरी नहीं है। क्या पता मैं शायद अपने बुढ़ापे के टाइम में कोई मुझे बोले कि आप स्टॉक में पैसा डाल दीजिए और मैं डाल दूंगा, मेरा पैसा नीचे चला जाए। तो आई एम नॉट अगेंस्ट एनी स्टॉक्स, बट आई एम अगेंस्ट कीपिंग ऑल एग्स इनटू वन बास्केट। लेट अस स्प्रेड। मैं कोई प्रॉपर्टी के अगेंस्ट नहीं हूं, प्रॉपर्टी खरीदिए, बिल्कुल खरीदिए, लेकिन ये ना सोचिए कि प्रॉपर्टी में डाल दिया सारा मैं गुजारा अभी किराए से करूंगा। क्यों? क्योंकि मैं एक हमारे बहुत पुराने संगीतकार थे नौशाद साहब, आप लोग उनको जानते होंगे। तो नौशाद साहब ने बहुत पैसा कमाया, बहुत ज्यादा तो नहीं आजकल के म्यूजिकल डायरेक्टर्स के हिसाब से, लेकिन उनके 4 मकान बॉम्बे में थे और कोई भी किराएदार ने मकान खाली नहीं किया। तो सारी जीवन पूंजी कहां चली गई? कोर्ट कचहरी में चली गई। तो मैं आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, आप इस सेमिनार में आए, और इस सेमिनार के आने के बाद आपको धन्यवाद के साथ साथ आपसे एक वादा भी लेना चाहता हूं कि ये एक नॉन ऑब्लिगेटरी सेशन है, ये एक एजुकेशन सीरीज है। हम आप लोगों का ज्ञान वर्धन करना चाहते हैं एट नो कॉस्ट। वेदर यू बाय एनी प्रोडक्ट फ्रॉम अस और यू डोंट बाय, आई एम absolutely okay. You buy product from our company or any other company, we are okay. But we just want कि ये एक generation changing thought है कि हमको सिर्फ आज में नहीं जीना है, हमारे को कल के बारे में भी सोचना है। और मैं दीपक जी के उसी बात को दोबारा दोहराऊंगा कि मेरा बुढ़ापे का सबसे डिपेंडेबल और सबसे प्रिय मित्र और कोई नहीं है, मैं खुद हूं अपनी जवानी के डिसीजंस की वजह से। और ये बात तो मैं एक बात और आगे लेके चलता हूं कि हमारे साथ बहुत सारे इंजीनियर्स, डॉक्टर्स लोग जुड़े हुए हैं। आप लोगों को बताऊं कि आप लोग इंजीनियर, डॉक्टर शायद बहुत अच्छे पद पे पहुंचे, इसलिए पहुंचे क्योंकि बचपन में शायद आपने अच्छे से पढ़ाई करी थी। यानी कि फ्यू डिसीजंस दैट यू टुक in your childhood, they helped you in your youth. And if you are taking right decision in your youth, you will be not living your retired life, rather you will be celebrating your retired life. जीवन संध्या जो है खूबसूरत शाम की तरीके से न होनी चाहिए, कोई संघर्ष नहीं होना चाहिए। You should really enjoy your retirement। और आप लोगों जो हमारे साथ कुछ सीनियर सिटीजन्स हैं, मेरा आप लोगों से अनुरोध है, हाथ जोड़ के विनती है कि आप अपने बच्चों को भी ये चीज आज से ही समझाइए कि कल की बात कल सोचेंगे नहीं, कल की बात आज सोचेंगे, ताकि कल की बात तो कल एग्जीक्यूट हो जाए। तो इसके साथ मैं बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा हमारे एक्सपर्ट्स, हमारे पेंशन। तो पेंशन वाले वर्ड पे किसी ने कुछ बेटों के बारे में बात करी, शायद मिस्टर एचएल बजाज, अगर मैं सही नाम याद कर पा रहा हूं, 2 बेटे थे। तो मैं ये कहता हूं कि वो बेटों को तो आप जरूर करवाइए, लेकिन एक तीसरा बेटा जो है सन, क्या नाम है? पेंशन। तो तीसरे बेटे की भी आप बिल्कुल अच्छे से करिए। 2 बेटे शायद धोखा दे जाए। ये जो पेंशन है,
जो बेटा है पेन वाला, जो हमें डिसीजन लेना है, वो सन हमारे को धोखा नहीं देगा और हमारे जीवन यापन में बहुत खुशनुमा रहेगा। संयुक्ता जी की बात को याद करता हूं कि रहे ना रहे हम महका करेंगे, क्योंकि हम अपनी वेल्थ को अपने बच्चों को भी दे के जाएंगे। जब तक हम रहेंगे उस पैसे को एंजॉय करेंगे और हम जब इस जीवन से जाएंगे तो अपनी वेल्थ अपने बच्चों के हवाले करके और उनकी यादों में महकते रहेंगे। इसके साथ साथ बहुत बहुत धन्यवाद सभी लोगों का, आप लोग आए। हम आपके साथ डिफरेंट नीड्स की रेगुलर वेबिनार करते रहेंगे। तो मैं आप लोगों को आज अगले वेबिनार का इन एडवांस इन्विटेशन दे रहा हूं। कब होगा, क्या होगा, वो हम आप लोगों के साथ दोबारा साझा करेंगे। धन्यवाद। Thank you. धन्यवाद जी, धन्यवाद। Thank you. Thank you everyone. Thanks for joining in. दिनेश जी लाइव से हटा लीजिए। Dinesh, now you can close the live telecast. Dinesh, we can close the live telecast. करने के लिए कोई भी की दबाएं।